कोई डाउट है किसी का? सुष्टिम? No, sir. ठीक है, एवरीवन टर्न ऑन योर वेबकैम्स। कहाँ तक हो गया था? पेज नंबर 92। ठीक है, सो ठीक है। So in the last class, what I was telling you, I was telling you about the saturated and unsaturated fat. That saturated fats are beneficial for us because they are sorry, the unsaturated is beneficial for us, ठीक है, because they are double bonded and they can be easily broken. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें. So they are either unsaturated are either double bonds or triple bonds. Saturated are single bonds. Saturated fats are there in the ghee or protein, ghee और butter, ठीक है, और anything which is saturated मतलब जो जमी हुई है, means anything which is in the solid form at room temperature, which is in solid form the room temperature, उसको हम लोग बोल रहे हैं saturated fat. और बात किया था हमने वी शुड ईट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था. क्लियर? वी हैव आई टॉक्ट अबाउट मूफा, है ना, व्हाट यू शुड ईट, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. एडिबल ऑयल के बारे में बताया था दैट एडिबल ऑयल इज व्हाट, एडिबल ऑयल इज बेसिकली द एडिबल ऑयल इज एनी ऑयल which can be eaten is the edible oil. So there can be sunflower, okay, canola, soybean oil, mustard oil. These are all the sunflower. These are all the edible oils. Next, one more thing is there that you need to understand is the about the omega-3 fatty acids. So what is the omega-3 fatty acids? So they are something which is good for your health and they found especially in the fishes. तो वहाँ पे क्या मिलता है? omega-3 fatty acids you find there. ठीक है ना? So alpha linic acid, it is the omega-3 fatty acids which prevents the accumulation of the fats in the blood. So if the fat is accumulated in the blood, what will happen? It will lead to the high amount of cholesterol. ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, द मीनिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द ओवरऑल ब्लॉकेज ऑफ द वेन्स आर्टरीज, है ना, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट. ठीक है, सो लाइनो linolenic acids, it is an omega-3 fatty acids which prevents the accumulation of the fats in the blood. Okay, the among the oils, the linseed has the large amount of the alpha linolenic acid. तो ये PYQ है इसलिए ये हाईलाइटेड है. तो ये क्या है ओवरऑल? ये लिंसीड में बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, ये हो गया. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दी कैनोला, सोयाबीन एंड दी वॉलनट ऑयल. तो इस तरह की चीज़ आपको कंज्यूम करनी चाहिए. ठीक है. Next, I'll talk about the trans fat. Do anyone in the class know what is the meaning of trans fat? Trans fat. ट्रांस फैट का मतलब क्या होता है? देखो, जितने भी वन थिंग इज देयर नोन एज द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस. व्हाट इज दिस? ये क्या होता है? एनीवन? कार्सिनोजेनिक, हाँ, व्हाट रिया? Those substances that causes cancer. हाँ, those substances which causes cancer are known as the carcinogenic substances. Now carcinogenic substances, they have the lot amount of the trans fat. So trans fat is something which is not good for us. जो फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रोजन, ठीक है ना, फ्रोजन फ्रूट्स, जैसे आप बेकरी में जाते हो वहाँ पे देखो लगाता है आइसक्रीम्स और दैट बर्गर और सम फ्रोजन आइटम, है ना, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें. क्या हो गया? These all are the frozen item which you should not eat those things because it contains lot of the trans fat.
Yeah, for example, if there is any a sweet shop, and in that sweet shop, samosa shop, for example, and that person is making samosa in the same oil, ठीक है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग दे आर मेकिंग समोसा इन द सेम ऑयल, पुटिंग द सेम ऑयल, और जो बच गया उसको अगले दिन यूज़ कर रहे हैं. सो इफ़ यू गोइंग टू यूज़ द सेम ऑयल अगेन एंड अगेन, इट विल लीड्स टू जनरेशन ऑफ द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज. ठीक है, तो सेम ऑयल को मैं बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, एक बार यूज़ करना चाहिए इस तरह से. ठीक है ना. सो दिस इज रिगार्डिंग ट्रांस फैट. तो दे आर वॉट, दे आर द मोस्ट आर्टिफिशियली क्रिएटेड partial hydrogenation of the liquid vegetables oils. ठीक है ना. ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एनिमल फैट्स ऑयल. तो मतलब प्रेजेंट रहते हैं, ये सब पता होना चाहिए थोड़ा सा. ट्रांस फैट रेज्ड दी बैड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, मतलब दिक्कत करते हैं कहीं ना कहीं, ये पूरी बात बोल रहे हैं यहाँ पर. ट्रांस फैट, सो यू शुड नॉट ईट ट्रांस फैट, कंज्यूम नहीं करना चाहिए इसको. ठीक है ना. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स एंड व्हाई वी शुड कंज्यूम द प्रोटीन्स. सो ओवरऑल द प्रोटीन्स हेल्प इन द मसल मेकिंग, है ना. जैसे आपने देखा होगा कोई हुएवर इज गोइंग टू द जिम, जिम से याद आया एक बताया तुमने, जिम्नियोस्पर्म्स दे आर द नेकेड सीड और द सीड विद द कोटिंग, naked sit. नेकेड सीड. ठीक है, कैसे याद कराया था. इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम, तो हम कपड़े कम पहन के जाएंगे. ठीक है, इस तरह से. So proteins, so they are very much helpful for the building overall, building the muscles in the body. ठीक है. So whoever is goes to the gym, they eat lots of the protein, है ना, whether in the form of eggs, soybean or chunks or some other form, or they take the protein shake for powder, ये सब लेते हैं वहाँ से. तो प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है. नाउ hence definitely you require, your body require the protein, clear, and protein is the source of energy also. Pulses are the most important source of the proteins, and pulses are the leguminous plant also, rhizobium वो सब करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. रेस्ट whoever is the elder, तो आपके घर में जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए. तो उनकी मसल बिल्डिंग, क्योंकि अब उनकी एज हो गई है, तो लाइक दे आर ओवरऑल द बॉडी इज़ नॉट दैट मच सपोर्टिंग. तो उनको ओवरऑल द इंटेक ऑफ द कैल्शियम, मल्टीविटामिन, दीज थिंग्स आर वेरी मच नीडेड फॉर देम. और इसीलिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो भी आपके माता जी, पिताजी, हु एवर इज देयर, ठीक है ना, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट दे आर कंज्यूमिंग इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वेदर इन द फॉर्म ऑफ eggs or whatever. If they are vegetarian, then pulses could be an option, है ना. And if they don't like the milk, in the this is just suggestion, जन औषधि केंद्र, है ना. So जन औषधि केंद्र are there, ठीक है ना. In the जन औषधि केंद्र we have the multivitamins, मल्टीविटामिन्स. ठीक है ना. सो मल्टीविटामिन्स मीन्स वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो, करीबन 20-30 रुपये मिलती है. ठीक है ना. और उनको खिलाओ डेली एक टेबलेट, विल बी हेल्पफुल. ठीक है. सो सम what I want to say, if some generic people is there, ठीक है ना, or old people is there, they need some extra amount of the nutrient which they cannot have from the food, उसको नहीं मिल पाता उनको. So proteins are the building block of the body tissue. तो बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, द प्रोटीन. एंड टिश्यू कैसे बनाता है, मैंने बताया था, सेल का ग्रुप बनेगा टिश्यू, एंड टिश्यू ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म्स दी ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. न्यूट्रिएंट फॉर द रिपेयर एंड द ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यू. सो ओवरऑल इफ यू आर मेकिंग मसल्स और सारी चीज़ें चाहिए, यू नीड प्रोटीन. ठीक है ना. सो दिस इज जस्ट लाइक द फ्यूल. elderly people need more protein than the young ones. So it's written there too, जो भी elder हैं, they need more protein than the young ones. Next, the heat, X-rays and the heavy metal, salt, etc. denatured the protein where the infrared does not. What is the meaning of it? So if there's a protein, for example, if there's a protein, and it is, if that protein is exposed to the heat, X-rays or heavy metals or salt, तो it denature, यानी उसका नेचर को चेंज कर देता है. इट विल चेंज इट्स नेचर. ठीक है ना. बट इंफ्रारेड विल डोंट. सो दिस इज अ PYQ, है ना. दे विल आस्क, उसमें लिखा होगा, जब आप घटना चक्र प्लीज लगाओ आप लोग, तभी समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. वैसे तो ऐसा लगेगा कि क्या ही चल रहा है, पता नहीं चल रहा, until unless you not solving the घटना चक्र. अमीनो एसिड सर्व्स एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन. तो अमीनो एसिड क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी. अच्छा, ये Nephron. नेफ्रॉन. ठीक है. रिया ने बताया, रिया ने, किसने बताया, रिया ने. ये अच्छा, फ़ैन की आवाज़ आ रही है क्या, छोटा सा फ़ैन चल रहा है, क्योंकि अभी AC यहाँ पे ऑन नहीं है. आवाज़ तो नहीं आ रही फ़ैन की, इको तो नहीं हो रहा कुछ. हाँ, No, sir. ठीक ठीक. सो अमीनो एसिड सर्व्स एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दी प्रोटीन. किडनी जो है इसका बेसिकली नेफ्रॉन इज दी बेसिक यूनिट. अच्छा, एक है जैसे मैं बोलूँ हेपेटिक,
हेपेटिक, तो ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है? लीवर। हाँ लिवर। ठीक, कहीं भी कोई हेपेटाइटिक आ जाएगा, कुछ कुछ भी आ जाए, हेपेटाइटिस ए बी सी, ये सब क्या है, ये लिवर से एसोसिएटेड है। लिवर का फंक्शन क्या है? बाइल जूस, ये सब डाइजेशन का काम है ना। क्या मैंने ये बताया था, डिड आई टोल्ड यू दिस दैट ओवरऑल livers, नहीं ओवरऑल द किडनी, मैनग्रूव्स, मैनग्रूव्स आर द किडनी ऑफ द वर्ल्ड, बताया था क्या ये? हाँ, क्यों? नो सर। सॉरी सॉरी, इसको लंग्स है, इसको भी लिख लो, पता होना चाहिए। मैनग्रूव्स आर नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वेटलैंड्स आर नोन एज द किडनी ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में बात करें। वाई, वट इज द फंक्शन ऑफ द मैनग्रूव्स? मैनग्रूव्स आर द प्लांट्स ओनली, जो कि पानी में पाए जा रहे हैं, और प्लांट्स का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। सो दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, एज बोलते हैं, आर हाफ ऑफ द लंग्स आर हैंगिंग अप देयर, आर हाफ ऑफ द लंग्स आर हैंगिंग अप देयर इन द प्लांट ट्री में। तो मैनग्रोव्स आर द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वेटलैंड? वेटलैंड डू द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। एंड किडनी का भी फंक्शन वही होता है ना, फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी का। ठीक है, किडनी क्या करती है? कन्वर्ट करती है टॉक्सिक चीज़ों को लेस टॉक्सिक में, आई टोल्ड यू। सो किडनी, सो लंग वेटलैंड्स आर द किडनीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, okay. Essential amino acids are non synthesized in the synthesized, not synthesized in the body। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे कि इफ इफ if something, for example, if some vitamins are there, for example some vitamins are there, and that vitamins is synthesized in the body में synthesize हो रहा है, तो वो essential हुआ कि non essential? हाँ, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल। ठीक है, एवरीथिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द बॉडी। इफ इट इज सिंथेसाइज इन द बॉडी, यानी कि बॉडी खुद बना रही है उसको, बॉडी इज मेकिंग इट। सो इफ बॉडी इज मेकिंग इट, सो फॉर बॉडी इट इज नॉन एसेंशियल। इफ बॉडी इज नॉट मेकिंग इट, then it is essential. For example, vitamin D will be essential or non essential? ये क्या होगा, गेस करो। ये होगा फिलहाल क्या होगा, मतलब बॉडी बना लेती है ना इसको, बाहर से चाहिए क्या हमें? नहीं, सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, देन इट विल बी सिंथेसाइज ऑन दी स्किन। ठीक है, तो ये बना लेती है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? दिस इज नॉन एसेंशियल। ठीक है, इस तरह से काम होता है। ये फॉर एग्जाम्पल अभी बात करें बी और सी, वाटर सॉल्युबल, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये एसेंशियल हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था ना, इसलिए मुझे याद आ गया। फूड्स ऑफ ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर नोन एज द कंप्लीट प्रोटीन्स। एग्जाम्पल इंक्लूड द मीट, पोल्ट्री, योगर्ट, एग्स, फिश। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, हमें इसमें हमें प्रोटीन मिलता है, और हमें इन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है ना, प्रोटीन को हमें कंज्यूम करना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आर एक्सपोज्ड टू द हीट। इफ दे आर एक्सपोज टू द हीट, दे विल डी नेचर्ड, और दे विल डी नेचर्ड, उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द केराटिन्स। व्हाट आर द केराटिन्स? ओवरऑल द बॉडी, हमारे बॉडी के ओवरऑल जो हेयर होते हैं, है ना, बॉडी में से हेयर, हमारे जो हेयर्स हैं, ठीक है ना, सर पे जो बाल हैं, या ओवरऑल द नेल्स, ओके, और the horns of the animals, they all are made of the keratin only। ठीक है ना। एंड इफ यू आर ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, सो फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स, कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स हो गए, और फाइबर्स, आई टोल्ड यू ना, फाइबर्स, यस्टरडे आई टोल्ड अबाउट द फाइबर्स। फाइबर्स कहाँ मिलेंगे? जो प्लांट, जो वट एवर फ्रूट्स यू आर ईटिंग, तो उस फ्रूट में जो पल्प है, पल्प, इन दैट पल्प देयर इज अ लॉट ऑफ द फाइबर्स। सो प्रोटीन, फाइबर, दीज आर वेरी गुड फॉर द स्किन, है ना। फॉर एग्जाम्पल द एलोवेरा, इफ यू आर अप्लाइंग द एलोवेरा, इट्स गुड फॉर यू। ठीक है ना। इन द सेम मैनर, सो ओवरऑल the hairs and the nails of the humans and the horn and hoof of the animals, they are made up of the keratin only, and keratin, it is a type of protein, so it is main constituent of the horns, nail, hoof, hair, skin। ठीक है ना।
ओके, एंड डेड टिश्यूज विद नो ब्लड सर्कुलेशन, तो ओवरऑल कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, हेंस व्हेन यू कट योर नेल्स तो आपको कोई पेन नहीं होता. नेक्स्ट इज दी ट्रायोसिन. Tyrosine is an amino acid that aids the formation of the neurotransmitters. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को एड करता है, तो पता होना चाहिए कि ये क्या है. इट इज़ दी ट्रायोसिन, इट इज़ दी अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड है विच एड्स द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स. नाउ मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वही न्यूरॉन्स के बारे में बात करें. न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं हमारे? न्यूरॉन्स मिलते हैं हमें ब्रेन में. ठीक है, ब्रेन में हमारे मिलते हैं, तो हम इसको ब्रेन सेल्स बोल सकते हैं. वी कैन कॉल इट द ब्रेन सेल्स. Brain cells. What you need to understand about neurons, that neurons are least regenerative cells. Neurons are least regenerative cells. ठीक है ना. और न्यूरॉन्स के खासतौर से अगर मैं इसकी सेल्स के बारे में बात करूँगा तो दे आर नोन एज द नर्व सेल्स. सो नर्व सेल्स दे आर द लीस्ट रीजनरेटिव सेल्स. नर्व सेल्स लीस्ट रीजनरेटिव सेल. ठीक है. एंड sperm cell is the longest cell. ठीक है ना, longest cell. क्लियर होगी बात. तो दे आर लीस्ट रीजनरेटिव सेल्स. और मैक्सिमम रीजनरेटिव कैपेसिटी lungs. हाँ, Lungs. मैक्सिमम रीजनरेटिव कैपेसिटी लंग्स की है. Liver. Sorry, liver. हाँ, ये सही है. ठीक है, प्लीज़ लगाओ आप लोग भैया, जब घटना चक्र लगाएंगे तो मज़ा आएगा. नाउ ट्रायोसिन की डिफिशियंसी कैन अच्छा, इसीलिए इसकी जो नर्व सेल की रीजनरेटिव कैपेसिटी लीस्ट है ना, इसीलिए इफ अगर कोई किसी को दिमागी कोई बीमारी हो जाती है ना, ल्यूनाटिक हो जाता है, बीमार हो जाता है कुछ, तो वो ठीक नहीं हो पाता जल्दी, क्योंकि बहुत कम रीजनरेट होती हैं. ठीक है. द डिफिशियंसी ऑफ द ट्रायोसिन कैन कॉज द लेजीनेस, सैडनेस. ठीक है ना. एंड ट्रायोसिन कैन बूस्ट द फिजिकल अलर्टनेस. ठीक है ना. तो ट्रायोसिन अगर आपके बढ़िया ट्रायोसिन काम कर रहा है तो फिजिकल अलर्टनेस रहेगी, इंक्रीज द एनर्जी रहेगी, हेल्प इन द स्ट्रेस, कम्बैट द डिप्रेशन, बट इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजिंग. प्लीज़ पे अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, प्लीज़ 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 थोड़ा सा ध्यान देंगे. हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रायोसिन के बारे में. इट इज़ एन अमीनो एसिड. ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रायोसिन, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर मतलब समथिंग विच ट्रांसमिट द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स. नाउ एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे मेरी तरफ. हमारी बॉडी में हाउ वी ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन. So the way of the communication, for example, if in a wire, if there's a wire, ठीक है ना. Now in a wire, particular in a wire, what will happen? Here we have the wire here. So this is the wire. This is the wire. So in the wire from one end to other end, how the energy is transmitted? So energy is transmitted by the electrons. कैसे ट्रांसमिट करती है? By the electrons. In our body, how the information is transmitted? Via the neurons. ठीक है. In our body, how the information is transmitted? So information in our body is transmitted via the न्यूरॉन्स. ठीक, न्यूरॉन्स. द सिस्टम ऑफ न्यूरॉन, इसको बोलते हैं पूरा न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम. ठीक. नाउ एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेड टू टो इट इज ट्रांसमिट फ्रॉम दिस न्यूरॉन. एंड द चैनल, जैसे यहाँ पर क्या है, दिस द वायर इज देयर, द चैनल इज वाया द स्पाइनल कॉर्ड. सो स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स in the movement or in the processing in the passing of the information, है ना. तो दिस इज द होल स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? इसको बोलते हैं क्या? दिस इज नोन एज दी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक. और ऑल्सो नोन एज दी वर्टिबल कॉलम. ठीक. स्पाइनल कॉर्ड और द वर्टिबल कॉलम, दिस हैज 33 बोन्स. ठीक है ना. वर्टिबल स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम. Why we are calling as a vertebral column? Because we are what? We are the vertebrates ना. Yes or no? We are the vertebrates. इसलिए vertebral column हो गया. Now there are 33 bones. ठीक है ना. So this is the vertebral column and each bone is known as the vertebra. ठीक है. Each bone is known as the vertebra. उसी से क्या होता है? Information पूरी जाती है. ठीक है ना. वो पूरा यहाँ से it is connected from here to down there. ठीक. तो ये पूरा न्यूरॉन्स का काम होता है. नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर? ट्रायोसिन के बारे में बात कर लिया. ठीक है ना. तो बेसिकली ये अलर्टनेस करता है, सब ठीक करता है, अच्छा करता है, बहुत अच्छी बात है. देन इट इज़ व्हाट टॉकिंग, देन इट विल इंक्रीज योर एनर्जी. ठीक है ना. इट विल रिलीज योर स्ट्रेस, कॉम्बैट डिप्रेशन, बट इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजिंग. नाउ कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स
अच्छा लिखा बगल में यहाँ पे, देखो ऐसे बताते फ्री रेडिकल्स क्या होता है। लुक, वी हैव द सेल्स, बॉडी में सारे सारे सेल्स हैं। अब जो सेल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जब ब्रेक होते हैं तो उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब ब्रेक होते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दीज फ्री रेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारी एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट, सो एंटीऑक्सीडेंट व्हाट इज इट? एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स ये होते हैं ना उनको खत्म कर देते हैं। तो आपकी जो एज है ना वो रुक जाएगी। जैसे आपने सुना होगा लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना काला कि समय को मात दे। तो समय को आप लैक्मे आइकॉनिक काजल लगा के नहीं मात दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? यू कैन समय को मात दे सकते हो विद दी एंटीऑक्सीडेंट। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग दी एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, यू कैन किल व्हाट, यू कैन किल दीज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्रिएट every now and then in our body. So not like Lakme Iconic Kajal, only the antioxidant. To consume the antioxidant. Antioxidant कहाँ पे होता है? Now you can consume the tablet also. Or for example, if you are eating the citrus fruits have lot of the antioxidants. एप्पल में होता है एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए आपने देखा होगा कश्मीर के लोग बहुत गोरे गोरे होते हैं, सुंदर सुंदर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एप्पल खा रहे हैं। एप्पल में क्या है? एंथोसाइनिन पिगमेंट है। एप्पल में क्या है? एंथोसाइनिन, ये तो पिगमेंट है वहाँ पे। उसके अलावा क्या है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। क्लियर होगी बात? तो कोई आप लिखा फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? दे आर दी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, डैमेज द सेल, व्हेन दे रिलीज फ्रॉम द बॉडी दे विल डू व्हाट, डैमेज द सेल। सेल कैन बी एनीथिंग, एनी सेल, फेशियल सेल, कहीं की भी सेल हो। डैमेज द सेल, प्रोटीन एंड डीएनए, लीडिंग टू द एजिंग एंड दी वेरियस डिजीज। सो अगर आपको लग रहा है आपकी एज बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी एज बढ़ गई है तो उसका क्या कारण है, उसका कारण यही है, फ्री रेडिकल्स। एंड इफ़ यू आर स्मोक, नॉट यू आर स्मोकिंग, इफ एनीवन इज स्मोकिंग, इफ एनीवन इज ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये सारा कंजम्पशन करता है तो फ्री रेडिकल का रिलीज और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको मैंने आज खूबसूरती का मंत्र दे दिया, एंटीऑक्सीडेंट खाइए बड़े से। आगे देखिए, लैक्टोबैसिलस के बारे में बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से बारे में। बैक्टीरिया है जो कि मिल्क, लैक्टोबैसिलस जो है, ठीक है ना, मिल्क टू स्पॉइल, तो ये मिल्क को स्पॉइल कर देता है। मिल्क को स्पॉइल करने का मतलब क्या, मिल्क को क्या बना दिया इसने, कर्ड बना दिया। मिल्क को स्पॉइल करने का मतलब क्या है, मिल्क को कर्ड बना दिया। अच्छा, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिल्क प्रोटीन? केसिन, नहीं, वो तो एंजाइम था। लैक्टोज, लैक्टोज था मिल्क प्रोटीन। रेनिन, हाँ, मिल्क प्रोटीन। रेनिन तो वो एंजाइम था ना, वो जो कन्वर्ट कर रहा था, उसमें हमें था हमारे पास रेनिन। ठीक, रेनिन तो ठीक है। और बाकी मैंने बताया था लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो जाती है। लैक्टोज मतलब मेरे कहने का मतलब है मिल्क प्रोटीन, या शुड से मिल्क शुगर, दिस इज द राइट वर्ड, मिल्क शुगर। थोड़ा करेक्ट करूँगा मैं। रिया हैज़ रेज्ड हैंड, हाँ रिया जी, ठीक है। तो लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। और बाकी फ्रूट शुगर क्या थी? फ्रूट शुगर वॉज द फ्रक्टोज, बात कर चुके हैं। टेबल शुगर, सुक्रोज। नाउ लैक्टोज, ठीक है सब। इट इज़ यूज टू मेक द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक द चीज़, कर्ड, पता है हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, येलो कलर ऑफ द काउ मिल्क, इट इज़ द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैरोटीन एंड द केसीन। तो केसीन प्रेजेंट होता है और कैरोटीन प्रेजेंट होता है किसमें, काउ के मिल्क में, इसलिए वो क्या होता है, येलो कलर का होता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है विच इज यू शुड नो, इज द कोलेस्ट्रम। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? ना फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई द मैमल्स आर कॉल्ड एज द मैमल? तो मैमल को मैमल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ उसके पास क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, मिल्क सिक्रीट होता है। दिस मिल्क नर्चर द यंग वंस, क्या करती है, यंग वंस को नर्चर करता है। ठीक, और बाकी मैंने बताया था द विवीपेरस, विवीपेरस एंड ओवीपेरस। ओवीपेरस, ओ में क्या आ गया, ओ आ गया, ओ मतलब शेप, गोल गोल शेप आ गया। गोल शेप का क्या होता है, एग होता है। तो ये क्या होते हैं, एग लेइंग मैमल। जो एग दे रहा है वो हो गया ओवीपेरस, और जो यंग वंस को जन्म दे रहे हैं, यंग वंस दे आर दी विवीपेरस। तो मैमल्स आर, ह्यूमंस आर द विवीपेरस, ठीक है ना। ह्यूमंस आर द विवीपेरस। कैंगरू इज ऑल्सो व्हाट, कैंगरू इज ऑल्सो विवीपेरस। पर कैंगरू इज द मार्शुपियल एनिमल, मार्शुपियल एनिमल। ये मार्शुपियल कौन होते हैं, वो एनिमल जो अपने बेबी को पाउच में कैरी करते हैं, तो मार्शुपियल हो गया। ठीक है, अभी कैंगरू के बारे में आगे बात करेंगे, तब मैं बताऊंगा। क्योंकि कैंगरू कहाँ रहता है, कैंगरू हो गया, ये कैमल हो गया, ये दोनों कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट में। तो डेजर्ट में रहने की वजह से क्या होता है, ये पानी का, like they will save water. Now if they are saving water, they will do what, they will not going to secrete lot of amount of water via urine or via the excreta of the body. So इनका जो excreta होता है, the excreta of the kangaroo and the excreta of the camel, it is in the very much solid format. भाई मैंने क्या बताया था there, what I told you, what is the function of large intestine? Large intestine absorb water, but in case of the human we have the enough availability of the water, ठीक है ना, we are not living in the desert, ठीक है ना। सो हमारे जब एक्सक्रीटा में देयर सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना।
बट इन द केस ऑफ द कैंगरू और कैमल, बिकॉज दे लिव्स इन द डेजर्ट एरिया, सो उनका जो एक्सक्रीटा होता है इट इज़ टोटली सॉलिड, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात कर रहे थे यहाँ पे विच इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कोलेस्ट्रम के बारे में, ठीक है ना। कोलेस्ट्रम, what is colostrum? So colostrum is a milk. What kind of milk? It is the first milk which is produced from the mammals after giving birth. So जब भी, if let's say for example if there's a lady and she is conceiving, so after the conceiving, okay, after the conceiving, the first blood that will the first milk that will come, ठीक है ना, in her breast is known as the colostrum, and this colostrum has lot of the properties. For example, the antibodies होती हैं, nutrients होते हैं, essential immunities होती हैं, and this is of very dark pitch yellow color. सो कई लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर नॉट एजुकेटेड, व्हाट दे विल, इफ एनी यंग वंस हैज बॉर्न, बेबी बॉर्न, दे विल डू व्हाट, दे विल समटाइम्स उसको हनी खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो। नो नो नो, ओनली द केस शुड बी इफ फॉर एग्जाम्पल इफ द मिल्क इज नॉट कमिंग फ्रॉम द लेडी, सो यू कैन जस्ट गिव सम दैट मिल्क विद द बॉटल इफ दैट इज द केस। अदरवाइज जस्ट गो विद द कोलेस्ट्रम, मतलब जो फर्स्ट मिल्क आता है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, वो एक इम्यूनिटी देता है, नेचुरल इम्यूनिटी देता है। नेक्स्ट इज दी टॉकिंग अबाउट द केसीन। केसीन के बारे में बात किया था। केसीन इट इज द फॉस्फो प्रोटीन दैट मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ द काउ मिल्क। तो काउ के मिल्क में क्या है, केसीन है। तो यहाँ बात किया है केसीन के बारे में, काउ के मिल्क में केसीन है, ठीक है ना। एंड ओवरऑल अगर बात की जाए फैट, हाँ तो मिल्क प्रोटीन बोलने से तो केसी नहीं होगा ना। हाँ, मिल्क प्रोटीन केसीन ही होगा, हाँ ठीक है, ठीक। नहीं तो मैंने यहाँ पे करेक्ट किया था ना, मैंने यहाँ पे करेक्ट किया था ना इसको, मैंने इसको बाद में करेक्ट किया था ना, यहाँ पे मैंने मिल्क शुगर लिखा था, फिर लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर, ठीक है, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट शुगर। तो मिल्क ये हो गया मिल्क के बारे में। बाकी आपको पता होगा कि ओवरऑल जो बफेलो होता है उसका जो मिल्क का कंटेंट होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है। तो एवरेज फैट कंटेंट बफेलो के मिल्क में कितना है, 7.2%, ठीक है। व्हेन यू कंपेयर विद द काउ मिल्क इट इज़ ओनली 3.5 to 4% ओनली, ठीक है। एंजाइम रेनियम, ठीक है ना, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन रिलीज बाय द स्टमक, ठीक है ना, ओवरऑल। एंड इट वेनिशेज विद द एज ऑफ द 6 to 15 पीपल एंड लीड टू द लैक्टोज इंटॉलरेंस। बात कर चुके हैं इसके बारे में कि रेनिन जो निकल रहा है, रेनिन क्या है, रेनिन बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी से निकलता है ना, स्टमक से निकलता है। पर ये सिर्फ निकलता है 6 से 15, यानी कि बच्चों में निकलता है बस, उसके बाद नहीं निकलेगा। एंड क्योंकि नहीं निकल रहा है, हैंस मोस्ट ऑफ द टाइम इट लीड्स टू इनटॉलरेंस ऑफ द लैक्टोज। लैक्टोज इनटॉलरेंस हो जाता है, उसकी वजह से हम मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कर्ड को कर लेते हैं वो, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस है, क्लियर। मदर मिल्क इज दी ऑफर द कंप्लीट डाइट फॉर द न्यूबॉर्न एक्सेप्ट फॉर द आयरन। तो यानी कि मिल्क में क्या है, मिल्क में हमारा आयरन नहीं है, ये बात करें, मिल्क में सोडियम है, ये वो सब सही है, आयरन नहीं है, तो बाकी बच्चों के लिए सब अच्छा है, ठीक है। बच्चों की एंटीबॉडीज बनाता है, इम्यूनिटी बनाता है, दिस इज इट। ब्रेस्ट फेड बेबीज आर लेस प्रोन टू द ओबेसिटी, बॉटल बेबीज आर, ठीक है, मतलब इफ़ यू आर फीडिंग द बेबी विद द बॉटल्स, सो वो क्या होगा, दे विल बी प्रोन टू द ओबेसिटी। बट इफ़ यू आर फीडिंग द बेबी डायरेक्टली, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, दे विल लेस प्रोन टू दी ओबेसिटी और दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज दी मैरस्मस। नाउ टू डिजीजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट whenever you talk about the proteins, whenever you are talking about the proteins, two diseases are very important from the point of view of the proteins. पहला क्या है, मैरस्मस, और दूसरा है क्वाशियारकर। so these two diseases are happened because of the protein, इसको बोलते हैं PEM है, इज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऐसे बात करते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूरॉन्स एंड दीज सेल्स, सो देयर वाज अ डिजीज आल्सो, अल्जाइमर डिजीज, बताया था अल्जाइमर डिजीज, है ना। वो क्या होता है अल्जाइमर डिजीज, हाँ ठीक है। सोयाबीन क्या है, सोयाबीन इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, नियर अबाउट 40% प्रोटीन इज देयर इन द सोयाबीन। नाउ ग्लूटन इट इज़ अ प्रोटीन कंपोजिट ऑफ द व्हीट, प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी, ठीक है ना, इलास्टिसिटी, और बेसिकली एडिंग द ब्रेड और मेकिंग द ब्रेड। कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रेड होती है बहुत ज़्यादा फूल जाती है ना। वाई इट इज़ सो मच पफी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूटन, ठीक है ना। तो ग्लूटन को आर्टिफिशियली सिंथेटिकली भी ऐड किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द विटामिन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द विटामिन इज रिगार्डिंग द फंक। हु डिस्कवर्ड द विटामिन, द फंक हैज डिस्कवर्ड द विटामिन, ठीक है। Now what are the vitamins? Vitamin are the organic compounds. So they are the organic compound, ठीक है, and they cannot be synthesized in the human body, ठीक है। तो they are not synthesized, cannot be synthesized, synthesize नहीं हो रही है, यानी कि बन नहीं रहे मतलब ये क्या हो गया, they are the
एसेंशियल्स, ठीक है ना, दे आर दी एसेंशियल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट दी विटामिन्स, तो यहाँ पे याद रखना है, बस आपने ये याद रखना है यहाँ पर, जैसे तो ऐसे तो ए बी सी सब, ए बी सी डी ई, ठीक है ना, के, लॉट ऑफ द विटामिन्स, what you need to understand is only WBC. So basically there are two types of the vitamins, ठीक, one is the fat soluble, another is the water soluble, ठीक. So what you need to understand, how you will understand is WBC. W for what? Water, ठीक, or you can understand WBC, white blood cells, ठीक है. So WBC, W for water and BNC. So water solubles are the BNC, whatever we are left with are the fat soluble, ठीक है. Water solubles are BNC and whatever we are left with are the fat soluble. And if BNC are the water soluble, what will happen? Every now and then we'll eat or we'll drink water. The moment we are drinking water, they will pass through the urine और ओवरऑल बॉडी से निकल जाएंगे, सीक्रेट हो जाएंगे, ठीक है ना. सो बॉडी इज ऑलवेज इन द हंट, इन द सर्च ऑफ दिस बी एंड सी. बी और सी की सबसे ज़्यादा बॉडी को कमी रहती है. क्यों? क्योंकि ये बॉडी से निकल जाते हैं, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल्स. बट ये फैट सॉल्युबल्स होते हैं. बाकी के बच्चे कौन से बच गए? ए हो गया यहाँ पे, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, के हो गया. सो दे आर वॉट? सी नहीं होगा यहाँ पे. दे आर वॉट? ई हो गया, ठीक है. तो दे आर वॉट? दे आर द फैट सॉल्युबल, ठीक है. दे आर द फैट सॉल्युबल, मतलब फैट में रहेंगे. विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल. अब बात करते हैं थोड़ा सा व्हाट इज द सी. सी के बारे में बात की, एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो सिट्रस फ्रूट से मिल रहा है वो सी हो गया आपका. विटामिन ए एप्पल में मिलेगा आपको, एंथोसाइनिन में मिलेगा आपको, ठीक है. विटामिन ए आपको कहाँ मिलेगा? एप्पल में, एंथोसाइनिन में. एंड विटामिन ए ऑल्सो कंटेन व्हाट? इट कंटेन्स दी एंटीऑक्सीडेंट. इसमें भी क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी फ्री रेडिकल्स को मारते हैं, एंटीऑक्सीडेंट. विटामिन ई, हैव यू एवर टेकन अ टैबलेट ऑफ विटामिन ई? मेरे पास रखी थी यहाँ पे, अभी नहीं. हैव यू एवर टेकन द विटामिन ई? नहीं. सुशनेम नहीं लिया कभी? नहीं. ओके. विटामिन ई की टैबलेट आती है, मेरे पास तो अभी रखी थी, अभी खत्म होगी शायद. वो ऐसे होती है, ग्रीन कलर की होती है, ऐसे कलर की, ठीक है ना, ऐसे कलर की. क्लियर? नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस विटामिन ई? विटामिन ई इज नोन एज द ब्यूटी विटामिन. ब्यूटी विटामिन. तो इफ यू वांट टू बिकम अ ब्यूटी क्वीन, ठीक है, तो आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे मैं भी ब्यूटी क्वीन बन रहा था तो मैंने इस्तेमाल किया इसको, ठीक है ना. तो कहने का मतलब क्या है? विटामिन ई इज नोन एज द ब्यूटी विटामिन. नाउ दिस बॉडी नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन ई, ठीक है ना. सो यू कैन टेक दिस विटामिन ई और मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दैट आर देयर इन द मार्केट, if you going to see the composition of them, what you will find? You will find vitamin E enriched, vitamin E enriched, ठीक है ना. So if you want to don't want to purchase this costly item, what you can go with the generic medicines. वही जन औषधि केंद्र, ठीक है, जन औषधि, वहाँ जाओ और वहाँ पर आपको 20 रुपये में या 10 रुपये में आपको बहुत सारी मतलब मिल जाएंगी, ठीक है, 10 12 15 मिल जाएंगी. एंड जस्ट ओपन इट एंड अप्लाई इट. It has just oil content. You can also consume it orally and apply on the skin also. So this is E, vitamin E. The one question that can be framed from here is the vitamin E. What kind of vitamin it is? It is a beauty vitamin. आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा. Then vitamin D, we know the sunshine vitamin. Sunshine vitamin, ठीक है, sunshine vitamin. Next vitamin K. Vitamin K is responsible. देखो, K for clotting. क्लॉटिंग तो सी से स्टार्ट होती है ना, पर अगर इफ वी आर प्रोनाउंसिंग द क्लॉटिंग तो हम क्या बोल देंगे? के फॉर क्लॉटिंग. कैन वी से रिया? के फॉर क्लॉटिंग, के फॉर क्लॉटिंग, ठीक है. तो के फॉर क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग में काम आता है. कौन सा क्लॉटिंग में? ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में. सो इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल रिया कट द हैंड ऑफ सम फ्रेंड, तो क्या होगा? उसका ब्लड बहेगा. पर आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, ठीक है, व्हाट विल हैपन? उसका जो ब्लड है वो रुक जाएगा, क्योंकि उसमें विटामिन के का फॉर्मेशन हो. विटामिन के की वजह से उसकी क्लॉटिंग में हेल्प करता है. एंड यू नो दैट वो एलम जो होता है, एलम फिटकरी है ना, K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 .24H2O का होल ट्वाइस. तो एलम जो होता है, एलम ऑल्सो हेल्प्स इन दी कोगुलेशन. यू नो नॉट? आपने देखा होगा जो शेविंग करते थे लोग, शेविंग में वो एलम का इस्तेमाल करते थे, इफ़ यू रिमेंबर. And if you want to filter the water, let's say you have a tank of water
from which you are drinking the water, if you want to filter that water, what you can do, just put some alum on it, just put some alum on it, और उसके बाद क्या होगा, वो जितना भी जो whatever the sediments are there, it will settle down, ठीक है ना. And the same process is done in swimming pools also, but that is not done with the alum, that is done with the chlorine, that is known as the chlorination, ठीक है. उससे भी फिल्ट्रेशन का काम होता है, बट इट इज़ डन इन द लार्ज टैंक. फॉर द स्मॉल टैंक यू कैन गो विद द एलम. क्लियर. अब आगे बात करते हैं. सो विटामिन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द विटामिन. फर्स्ट इज द फैट सॉल्युबल. फैट में कौन कौन से हैं, ए डी ई के. दे स्टोर्ड इन द लिवर्स. आई टोल्ड यू फैट कहाँ स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है, हेंस द लिवर बिकम फैटी लिवर बन जाता है, ठीक है ना. एंड एडिपोज टिश्यू, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिपोज, फैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लबर, फैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिपिड, फैट, ठीक है ना. सो दे आर फैट स्टोरिंग. वाटर soluble vitamins are the B and the C. They are soluble in the water. Now water soluble vitamins consumed regularly on the diet. Why they should consume regularly? Because they will wash out from the water, body से हट जाएगा. Excreted to the urine and cannot be stored in the body except vitamin B12. Vitamin B12. B12 is cobaltomycin. Cobalt, प्रश्न आएगा, the question will be there. The question will be there. Cobalt containing vitamin. Do you know the carbon, the overall the atomic number of the carbon, C6 कार्बन. हाँ, उसका जो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 12. ये सुनो, हाँ, तो यू कैन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम दैट ओनली. पर ये कार्बन है, ये तो कोबाल्ट है, पर फिर भी थोड़ा हो जाता. तो B12 इज दी कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन. अभी आएगा, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी यहाँ पे है, द होल चार्ट इज देयर. आपको सिर्फ ये पढ़ना है, प्लीज़, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना, ठीक है. बट जस्ट मैं बता रहा हूँ. चलो पहले यहाँ से बताए तो फिर वो पढ़ लेंगे, ईजी रहेगा थोड़ा सा. पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द विटामिन ए. कौन कौन से विटामिन ए है हमारे पास, बी है, विटामिन सी है हमारे पास, ठीक है. विटामिन डी है, ई है, डी है, ई है और के, इतने विटामिन है, ठीक. उसमें से बी एंड सी इज व्हाट, दी वाटर सॉल्युबल, रेस्ट आर द फैट सॉल्युबल, ठीक है. विटामिन ए. नाउ व्हाट कुड बी द क्वेश्चन, मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है. तो क्वेश्चन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द विटामिन. दे विल आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, दे विल आस्क व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन. तो बताना पड़ेगा रेटिनॉल इज द नेम ऑफ विटामिन ए. दैट्स कुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिजीज कैन बी ट्रिगर्ड फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन. दैट कुड बी सेकंड टाइप क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट, ठीक है. दीज थ्री क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द विटामिन. एंड हु हैज डिस्कवर्ड विटामिन, फंक. PYQ है, ये सब PYQ है, ये भी PYQ है. सो विटामिन ए, इट इज नेम इज द रेटिनॉल. रेटिनॉल इन विटामिन ए कहाँ मिलेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इफ यू हैव द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, दिस विल लीड टू द नाइट ब्लाइंडनेस. दिखाई नहीं पड़ेगा आपको. सो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किससे आता है, द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज द नाइट ब्लाइंडनेस हैपन फ्रॉम विच डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन ए. दैट विल बी फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, ज़ेरोप्थेल्मिया. ज़ेरोप्थेल्मिया, हैव यू हर्ड अबाउट द ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स. ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, वो प्लांट जहाँ पर पानी कम है. तो ज़ेरोप्थेल्मिया क्या हो गया फिर, ज़ेरोप्थेल्मिया मीन्स, देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्थेल्मिया, ज़ेरो ऑप्थेल्मिया. डू यू नो द हु, व्हाट इज द स्पेशलिस्ट ऑफ आई, आई डॉक्टर इज कॉल्ड व्हाट. हाँ हाँ नहीं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. हाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. रिया कह रही हाँ कुछ तो है, ठीक है. आई डॉक्टर इज कॉल्ड एज द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ज़ेरोप्थेल्मिया मीन्स दिस इज नोन एज द ड्राई आइज. कहीं लिखा होगा यहाँ पे, ये लिखा ड्राई लिखा है यहाँ पे. दिस इज नोन एज द ड्राई आइज. आपकी आंख सूख गई है. और ड्राई आइज से मैंने बताया था, याद होगा आपको, आई टोल्ड यू अबाउट द घड़ियाल. सो देयर आई टोल्ड यू अबाउट द घड़ियाल. और क्रोकोडाइल आई टोल्ड यू अबाउट द क्रोकोडाइल. व्हेन क्रोकोडाइल्स कम्स आउट ऑफ द वाटर, उसकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, इसीलिए इट लुक्स लाइक दैट इट इज वीपिंग और ही इज वीपिंग. देन फ्रॉम देयर ओनली द इडियम्स कम्स क्रोकोडाइल्स टीयर. पर वो रोता नहीं है, उसकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, हेंस इट सीम्स लाइक दैट ही इज वीपिंग. तो दो चीज़ें बतानी चाहिए यहाँ से. पहला क्या है, वन इज द नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया. दिस हैपन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए. विटामिन ए कहाँ मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा आपको कैरोटीन में, मैंगो में, पपाया में, ठीक है ना. और बटर, कॉड लिवर ऑयल, यहाँ सब मिलेगा. और विटामिन ए आपको एप्पल में भी मिलेगा, ठीक है ना. और एप्पल में विटामिन ए मिलता है. और एप्पल में, एप्पल इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट. जितने भी फ्रूट्स हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर दी एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना.
फिर बात करते हैं विटामिन बी. नाउ विटामिन बी हैज बीन डिवाइडेड इनटू सम अदर विटामिन्स. द कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द विटामिन बी. सो हियर वी हैव द विटामिन बी थायमीन. B1 इज द थायमीन. नाउ यू नीड टू रिमेंबर द नेम आल्सो. ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देना, नेम भी याद करना है. B1 इज द थायमीन, B2 इज द राइबोफ्लोविन, B3 इज द नाइसिन. ठीक. नेक्स्ट B5 इज द पेंटेनोइक एसिड. ठीक. B6 इज द पेरिडॉक्सिन, B7 इज द बायोटीन एंड B9 फोलिक एसिड, कोबाल्टोमाइसिन. याद करना, देखो कैसे याद करेंगे. B1 इज द थायमीन. ठीक. ओके. सेकेंड B2 इज द राइबोफ्लोविन, B3 इज द नाइसिन. B4 इज द पेंटेनोइक. नाउ बाई ट्राई टेट्रा क्वाडा पेंटा. इजी है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, तो पेंटा 5 है, तो पेंटा 5 हो गया. ये PYQ नहीं था इसलिए येलो हाइलाइटर नहीं है. B6 इज दी पीरिडॉक्सिन, B7 इज दी बायोटिन. अच्छा, बायोटिन बेसिकली और कहाँ यूज होता है? बोटॉक्स यूज होता है. अच्छा, बोटॉक्स क्या होता है? बोटॉक्स, व्हाट इज बोटॉक्स? आई थिंक यू डोंट यूज मच ब्यूटी प्रोडक्ट्स. मतलब हेयर ट्रीटमेंट. हाँ कुछ बता रही थी क्या? बताओ क्या बता रही हो? जो हेयर ट्रीटमेंट होता है ना वो. नहीं, वो नहीं है. हेयर ट्रीटमेंट तो ठीक है. बोटॉक्स क्या होता है कि आपने मतलब ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं. बोटॉक्स जैसे देखो, दो चीज़ होती है हमारी बॉडी में. आज हम पूरी ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं. एक होता है रिंकल्स, ठीक है ना, एक होता है क्रिंकल्स. ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है पर समझना है हमें. रिंकल्स और क्रिंकल्स. देखो, एक होता है जैसे ये हाथ है हमारा, ठीक है. अब इस हाथ में यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्किन थोड़ी सी होती है ना, ऐसे है ना, थोड़ी सी ऐसे होती है ना, दिस यहाँ पर एल्बो के पास. इसको बोलते हैं ये दीज आर दी रिंकल्स. ठीक है. सॉरी, एक मिनट. क्रिंकल्स, मैं भी कंफ्यूज हो गया. क्रिंकल्स, हाँ, दीज आर दी क्रिंकल. ये एज के साथ ये एज वाला फैक्टर है. दीज जो, हाँ, समथिंग विच इज़ परमानेंट. अब ये परमानेंट है, ये कभी नहीं जाएगा एल्बो के पास वाला. ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्रिंकल्स. तो क्रिंकल्स आर परमानेंट, वो हमेशा रहेंगे. बट विद द एज व्हाट वी हैव द रिंकल्स. हमारी आइज़ के नीचे यहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं. स्किन बहुत ही लूज हो जाती है. तो स्किन को टाइट करने के लिए, है ना, जो भी हुएवर इज़ यंग उसकी स्किन टाइट होगी. ठीक है, तो उसको उसके लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली एक वो है, मतलब केमिकल है, इससे बात कर सकते हैं. ठीक है. नाउ B9 is the folic acid, very important. B12 is very important, cobaltomycin, cobalt containing vitamin. Please pay attention, cobalt containing vitamin. तो आपको याद क्या करना है, पहले यहाँ देख लो. B1 हो गया. B1 देख लो. B1 की वजह से क्या होता है? बेरी इट इज़ अ डिजीज. B1 बेरी. ठीक है ना. और खाने में तो बस सब खा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, देखा जाए वैसे, द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड. दिस थर्ड सोर्स इज क्वाइट कॉमन, तो ये सब लगभग 19-20 सब सेम ही है. सो B1 इज द थाइमीन, बेरी होता है यहाँ से. B2 इज द राइबोफ्लोविन, इट कॉल्स, है ना, इट कॉजेज द ओवरऑल दिस, मतलब डर्मेटोटिस, मतलब यानी कि कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है. नाइसिन की वजह से होता है पेलेग्रा. ठीक है. और उसके बाद B6 जो होता है पिडॉक्सिन, इसकी वजह से हो गया कोई मेल्टन इलनेस हो गई, दिक्कत हो गई, उसके बारे में है. राइबोफ्लोविन की वजह से एनीमिया होता है. व्हाट इज एनीमिया? हीमोग्लोबिन कम होना. हाँ, हीमोग्लोबिन का कम होना. हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाएगा. और दैट एनीमिया, और बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है. एंड इन विमेंस ऑल्सो दिस, है ना, इन विमेंस ऑल्सो एनीमिया की बहुत ज़्यादा कमी होती है बिकॉज ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड रिलीज होता है, तो वो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एनीमिया की कमी हो जाती है. नेक्स्ट इज दी B12 कोबाल्टोमाइसिन. नाउ दिस इज, प्लीज पे अटेंशन. Whenever you type their anemia in the Google, it will add the word pernicious. Pernicious का मतलब होता है something which is very detrimental, dangerous. So pernicious anemia. So it is easy to remember then. Pernicious anemia, it is anemia only, but it is severe form of the anemia. It happened because of the deficiency of the B12. ठीक है ना. Now very easy, vitamin BC. ठीक है ना. Vitamin BC is the ascorbic acid. Now the thing is, if the paper is simple, what they will ask regarding vitamin A, B, C, D, E, इनके नाम याद पूछ लेंगे. अगर थोड़ा टफ बना दिया तो B के कंपोनेंट पूछ सकते हैं, ये वाले कंपोनेंट. ठीक है. नाउ विटामिन C इज द एस्कॉर्बिक एसिड. वेरी सिंपल, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम, ये याद करना है आपको. ठीक है ना. एंड
बेसिकली जितना भी खट्टा आइटम है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, इसका भी होता है, सिम्टम्स होते हैं, पेन में ज्वाइंट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और खाना आपने क्या है, सिट्रस फूड, ऑल द सिट्रस फूड हैज़ दी एस्कॉर्बिक एसिड, वो आपके खाना फाइबर्स होते हैं उसमें। विटामिन सी गुड फॉर द स्किन ऑल्सो, एंड विटामिन सी हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को मार देगा। विटामिन डी, सनशाइन विटामिन, इट इज़ नोन एज दी सनशाइन विटामिन, ठीक, लिखा होगा कहीं पर, नहीं लिखा है, सनशाइन विटामिन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। सो जस्ट रिमेंबर दिस फर्स्ट नेम ओनली। विटामिन डी में सारे नाम याद करना, पर विटामिन डी में सिर्फ एक नाम याद करना, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। एंड इसकी वजह से होता है क्या, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, ठीक है ना, और ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट, ये दो नाम याद रखना है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। विटामिन ई, टोकोफोरॉल, विटामिन ई, इट इज ऑल्सो नोन एज द एंटी स्टेराइल विटामिन, एंटी स्टेराइल विटामिन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटी स्टेराइल, स्टेराइल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेराइल, जैसे हम लोग जो वो यूज़ करते हैं, सिरिंज यूज़ करते हैं, ठीक है, सिरिंज यूज़ करते हैं, तो सिरिंज को क्या करते हैं, पहले उसको क्लीन करते हैं ना, उसको सैनिटाइज करते हैं ना, तो दिस सैनिटेशन प्रोसेस इज नोन एज द स्टरलाइजेशन ऑफ द सिरिंज, ठीक है ना। तो वो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या, उसको सब साफ कर दिया, कुछ बचा नहीं उसमें। इन द सेम मैनर दिस स्टेरिलिटी इन हिंदी दिस इज नोन एज नपुंसकता, ठीक, मीन्स इनएबिलिटी और इनकैपेबिलिटी ऑफ अ मैन टू प्रोड्यूस द यंग वंस, ठीक है, रिप्रोडक्शन पार्ट में, ठीक। सो दैट इज नोन एज स्टेरिलिटी, नपुंसकता। सो इफ इट इज द एंटी स्टेराइल विटामिन, सो इफ यू आर कंज्यूमिंग इनफ विटामिन ई, इट इज एंटी स्टेराइल विटामिन, और अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। अच्छा, एक और है ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, व्हाट इज ब्यूटी बोन, Collarbone. वेरी गुड, कॉलर बोन। मतलब आप, हमारे यहाँ तो कोई नहीं होता, फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या होता है कि इफ गर्ल और बॉय इज़ वेरी थिन और स्लिम स्लीक, दे विल से कि खाना नहीं मिलता है इसको घर पे, है ना, ऐसा होता है। सो बट अर्लियर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड व्हाट हैपन, इफ अ गर्ल इज़ वेरी स्लीक, थिन, स्लिम, ठीक है ना, सो उस टाइम पे उसकी उसकी बोन दिखेगी, दिस इज द कॉलर बोन, एवरीवन पे अटेंशन, दिस इज द कॉलर बोन, ठीक है। तो ये दिखेगी अगर खाना नहीं खाओगे सही से, तो बोलते थे कि अगर किसी लड़की की ये बोन दिख रही है ना, तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। विटामिन के, इट इज़ नोन एज दी नेप्थोक्विनोन, ठीक है, इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम, तो ये पता होना चाहिए, इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम। और ब्लड क्लॉटिंग टाइम में अभी आगे बात करेंगे, दो और विटामिन होते हैं, फिब्रियोजेन, ठीक है ना, और प्रोथॉम्बिन। तो फिब्रियोजेन और प्रोथॉम्बिन के बारे में बात करेंगे वो आगे क्लासेस में। और बाकी बात की मैंने एलम, एलम इज ऑल्सो यूज फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अब ऊपर पढ़ लेते हैं, तो वैसे पढ़ चुके हैं हम लोग, पर थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक है, मतलब बहुत यार बहुत है इसमें तो, चलो पढ़ लेते जल्दी से पढ़ लेते हैं। सम विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन, फॉर एग्जांपल विटामिन डी, तो विटामिन डी इज अ विटामिन विच एक्ट एज अ हार्मोन, तो ये वन लाइनर में क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन, ठीक है ना। विटामिन आर इन्वेंटेड बाय फंक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, रिकी देखो यहाँ पे, विटामिन आर इन्वेंटेड बाय फंक, फंक ने इसको इन्वेंट किया विटामिन को। विटामिन ए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द बीटा कैरोटीन, कैरोटीन कहाँ मिलता है, कैरोटीन जैसे हमारा कैरेट में ना, कैरेट में कैरोटीन मिलता है, तो कैरोटीन, कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए, देखो मैंने लिखा ना, विटामिन ए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द बीटा कैरोटीन, यानी कैरेट से मिलता है, कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए, ठीक है। एप्पल में भी विटामिन ए मिलता है, ठीक है। विटामिन ए रिक्वायर्स इन दी आईज रेटिना, आई की रेटिना विटामिन ए चाहिए ना, अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जेरोथेल्मिया, हाँ ना, हाँ, जेरोथेल्मिया, ड्राई आइज जो नीचे बताया है। विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस, बात कर चुके हैं उसके बारे में। सिट्रस फूड, यानी कि विटामिन सी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इंडियन गूसबेरी, दैट इज द आंवला, इज रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी, आपने आंवला खाया होगा, इंडियन गूसबेरी खाई होगी, इट इज द रिच सोर्स ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी, तो यू शुड ईट दैट, ठीक है। देन ऑरेंजेस, लेमन्स, है ना, दे आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी। बहुत ध्यान रखना है, द चिली मीन्स चिली, यू नो, चिली इज द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी ऑल्सो। So all the fruits that are of sour taste, ठीक है, they are rich source of the vitamin C. Apart from that, chili is also rich source of the vitamin C. And basically vitamin C, it is antioxidant, कोई भी चीज़ होगी जो खट्टी होगी वो एंटीऑक्सीडेंट होगी, विटामिन सी, ठीक है ना। एंड ऑल्सो विटामिन सी इज हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस, सो इफ you have wound or cut or anything problem in the body and it is not healing, so that could be easily healed with the
विटामिन सी, तो विटामिन सी कंज्यूम करो, हीट हो जाएगा। विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स इन दी आयरन ऑब्जॉर्प्शन। आयरन के बारे में हमने बात किया था कि आयरन इज नॉट देयर इन दी मिल्क, तभी मदर के मिल्क में आयरन नहीं था, तो बच्चों को आयरन कमी हो गई थी। ठीक है। वन मोर थिंग इज, जो मीट होता है ना, मीट, नॉनवेज, नॉनवेज में कुछ खट्टा नहीं होता, प्लीज पे अटेंशन। नॉनवेज में कुछ खट्टा नहीं होता, तो क्या नहीं होता, मतलब कौन सा विटामिन नहीं होगा फिर, विटामिन सी। देखिए, ठीक है, देखिए, है ना, नॉनवेज में, मीट में कुछ खट्टा नहीं होता, ठीक है, तो ये नहीं होगा। विटामिन के, इट इज नोन एज फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, पता है हमें, ठीक है। विटामिन के सनशाइन विटामिन है, सिंथेसाइज्ड आर डर्मेसेल, ठीक है, ओके, बस ठीक है, ओके। अच्छा, इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ स्किन। हाउ यू विल रिमेंबर दिस, डर्मा, डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन। एक पाउडर आया था डर्मीकूल, यूज किया क्या आपने, किसने यूज किया डर्मीकूल पाउडर, नहीं यूज किया। डर्मीकूल पाउडर, एक पाउडर आता था ठंडा ठंडा, डर्मीकूल। तो डर्मीकूल का नाम डर्मीकूल क्यों पड़ा, बिकॉज डर्मी मीन्स क्या होता है, डर्मी मीन्स स्किन, डर्मा स्किन, ठीक है ना। विटामिन B12 कोबाल्टोमाइसिन है, ठीक है ना, विच इज वाटर सॉल्युबल। तो भाई विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, तो बी के सारे कंपोनेंट भी लगभग वाटर सॉल्युबल हैं। दे रिमेन्स इन द लिवर फॉर 3 to 5 years। और लिवर में हम क्या स्टोर करते हैं, फैट भी स्टोर हो रहा है लिवर में, ठीक है ना, ओके। मैचुरेशन ऑफ डेवलपिंग ऑफ द आरबीसी, डिफिशियंसी ऑफ द कोबाल्टोमाइसिन लीड टू पर्नीशियस एनीमिया, बात किया था। कोबाल्टोमाइसिन B12 की वजह से क्या हो रहा है, पर्नीशियस एनीमिया। इट इज द ओनली कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। तो प्रश्न आएगा, विच इज द कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, विटामिन B12। थाइमीन, विटामिन B1, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, इट इज सोर्स ऑफ द, बस ठीक है, थाइमीन, बेरी बेरी, बस ठीक है। आपको सिर्फ वो टेबल याद करनी है। कॉड लिवर ऑयल फिश में मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, पता है। पोटेशियम, पोटेशियम इट इज द इलेक्ट्रोलाइट मिनरल, ठीक है ना, मेंटेनिंग दी हेल्दी हार्ट, ठीक है ना। लैक ऑफ द पोटेशियम लो ब्लड प्रेशर होता है ओवरऑल, ठीक है। एंड एप्पल इज द रिच सोर्स ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट, बात कर चुके हैं इसके बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। फ्री रेडिकल्स के बारे में बात कर चुके हैं, डैमेज करता है सेल को, डेथ हो जाती है, बात कर चुके हैं। फ्रेश फ्रूट में क्या मिलेगा, फ्रेश फ्रूट में सिट्रस फूड है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। करौंदा, हाँ करौंदा, करौंदा इट इज रिच सोर्स ऑफ द आयरन, मे बी यू हैव ईटन करौंदा, मलबरी, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, करौंदा। स्पिनच, पालक, पालक, पालक में क्या है, आयरन है, कैल्शियम है, ईट खाना चाहिए। पर पालक में क्या है, सेलुलोज भी है, सेलुलोज भी है, तो उसमें सेलुलोज को तोड़ के खाओगे ना, क्योंकि डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास सीकम नहीं, रेक्टम नहीं है, सीकम नहीं, अपेंडिक्स नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या है, सोर्स ऑफ आयरन, इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए। आयरन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है वो, ठीक है। आयरन में एनीमिया, एनीमिया की कमी से बचाएगा तुम्हें, ठीक है, बस ठीक है। वैसे एक ये क्वेश्चन आया था, ये देखो, ये क्वेश्चन आया था, ये PYQ ये भी है, न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, तो न्यूट्रा मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट, ये दो शब्द से बना हुआ है, प्लस सूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एनी फूड, any food or the part of the food supplement that offer the medicinal effect and also the nutritional effect, बात समझ गए। मेडिसिनल इफेक्ट भी है उसका, और न्यूट्रिशनल इफेक्ट भी है, क्योंकि न्यूट्रिशन भी है और फार्मास्यूटिकल भी है, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल राइस इज मोस्टली रिच इन द कार्बोहाइड्रेट, राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन ड्यूरिंग द हार्ड वर्क, वो कितना चाहिए उसको, 3500 से 4000 किलो कैलोरी उसको चाहिए। वाटर डज नॉट कंटेन एनी कैलोरी, वाटर में कैलोरी नहीं चाहिए, ठीक है। माल न्यूट्रिशन कैन हैपन फ्रॉम दी ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। सो इफ़ यू आर फेसिंग दी, और इफ़ यू आर गोइंग टू द अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन और इम्बैलेंस, ठीक है ना, तो किसी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। कौन सी दो डिजीज बताइए बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, विच टू डिजीज आई टोल्ड यू, बिकॉज Kwashiorkor and marasmus. क्वाशियोरकर और मैरस्मस, Marasmus. ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। अभी हमारा टाइम है, अभी कोई क्लास तो नहीं है, थोड़ा और बात कर लें इसके बारे में, हाँ, कोई क्लास तो नहीं है भी आपकी, अरे बताओ भाई। No, sir. ठीक है, थोड़ा सा और ब्रीथिंग के बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो ब्रीथिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ब्रीथिंग में बात किया था पहले हमने, द ब्रीथिंग इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड द रेस्पिरेशन, ठीक है ना, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, बात किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। अगर इफ़ देयर इज अ इनवर्टिब्रेट, फॉर एग्जांपल द स्पॉन्जीज इज देयर, प्लेटफॉर्म इज देयर ना, दे एक्सचेंज द ऑक्सीजन विद द CO2 विद अ सिंपल डिफ्यूजन। तो उनमें होता है सिंपल डिफ्यूजन, दे विल आस्क ए क्वेश्चन लाइक, आ सकता है इनवर्टिब्रेट में कैसे रेस्पिरेशन होता है। सो इनवर्टिब्रेट डू द रेस्पिरेशन वाया दी सिंपल डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करोगे अर्थवॉर्म, दे यूजेज दी मोस्ट क्यूटिकल इंसेक्ट्स हैव दी ट्यूब्स और ट्रैकिया, बात कर चुके थे ना हम लोग, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। उनमें क्या होता है, ट्रैकिया होता है, यानी कि जो भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें ट्रैकिया हो रहा है, ठीक है। इफ़ देर आर मराइन एनिमल्स, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल फिश, उनमें क्या होगा, दे विल हैव दी गिल्स, गिल से होगा उनका ट्रांसपोर्टेशन जितना भी होगा। और इनमें ओपन नेटवर्क होता है ना, ट्रैकिया होता है। और हमें हमें क्या होता है, हमारे में लंग्स होती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये हो गई। और उसके बाद एक्वाटिक जो एनिमल्स होंगे उसमें क्या होगा, दे हैव दी वेस्कुलर, एक मिनट, मोलस्क, अच्छा, वेयर दी वेस्कुलर वैक्स, हाँ ठीक है, उनमें लंग्स होंगी, पल्मोनरी आर्टरीज होगी। एम्फीबियंस में क्या होंगे, एम्फीबियंस में लंग्स होंगे, ठीक है ना। और फ्रॉग्स में क्या होगा, ये क्यूटिकल्स होते हैं उसमें। ह्यूमंस की अगर बात किया जाए तो ह्यूमंस में बेसिकली एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, हमारे पास नाक है ना, उससे कैविटी है, वहाँ से होता है सारा कुछ, ठीक है ना। नेजल चैम्बर बोलते हैं, फेरनेक्स बोलते हैं, इट इज़ अ पोर्शन विच इज़ कॉमन टू द पासवेज ऑफ द बोथ फूड एंड एयर, तो ये उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में बात किया था, फोटो दिखाई थी मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में। ये कंटेंट ज़्यादा है, आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपने तो पता ही है, आपने कम कम पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इसके सब, जितना येलो हाईलाइटेड है कर सकते हो ये चीज़, एटलीस्ट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। जितना येलो हाईलाइटेड है उसको हम लोग 20-30 पेज में नहीं लिख सकते हैं, छोटा छोटा करके। कैन वी राइट, लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, नहीं लिख सकते हैं रिया, लिख सकते हैं 20-30 पेज में येलो हाईलाइट को सिर्फ, ठीक है। और बात किया था हमने जो ट्रैकिया है, ठीक है ना, और उसके बाद बात किया था फेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स रीजन के बारे में, यहाँ पे साउंड बॉक्स के बारे में बात किया था। वोकल कॉर्ड जो है वो साउंड बॉक्स की तरह काम करती है। साइड ऑफ द गैस एक्सचेंज इन द लंग्स आर नोन एज दी एल्वोली, तो वहाँ पे क्या होता है, लंग्स में होते हैं एल्वोली, ठीक, एल्वोलाई। एल्वोलाइज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अब हमें 2-3 चीज़ें पता गई। एल्वोलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है, नहीं किडनी किसकी है, नेफ्रॉन, किसकी है, हाँ किडनी की। लिवर के लिए हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वो है, हेपेटाइटिस बात किया था हमने, तो कोई लिखा भी तो है यहाँ पर, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज दी नेफ्रॉन, ठीक है। लिवर के लिए क्या है, लिवर के लिए हेपेटिक बोलते हैं उसको, हेपेटाइटिस हो जाता है ABC, इस तरह से बात की थी, ठीक है। लैरिंग्स के बारे में बात किया, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स है, यहाँ से आवाज़ आती है। एल्वोलाई दे आर, दिस इज नोन एज दी एल्वोलाई, ये जो छोटी छोटी निकली है ना ये ऐसे, दीज आर दी एल्वोलाइज, ठीक है ना। एंड दिस इज दी गैसियस, द प्लेस ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, एल्वोलाइज आर द प्लेसेस ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना। एक और टर्म पता होना चाहिए, द टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम, तो ओवरऑल एक टाइम में जितना आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, यानी कि कितनी ऑक्सीजन अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टोटल रहता है 500 ml रहता है, नियर अबाउट कितना, 500 ml, ठीक है, ओके। सो मैं चाहूँगा कि आप ये काम करो एटलीस्ट, कि ये जितना येलो हाईलाइटेड है अपनी तरफ से इसका एक शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो देखो, दो चीज़ें कर सकते हो, शॉर्ट नोट तो वैसे भी चाहिए आपको, तो इधर यू कैन मेक द शॉर्ट नोट फ्रॉम हेयर, और जब घटना चक्र लगाओगे तो उसमें भी यही सारा कुछ मिलेगा, तो वो रिपीटेड ही होगा। तो एक एटलीस्ट 20-30 पेज में पूरा निपटा लो, बना के रखो एकदम बढ़िया सा। एल्वोलाइज आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, या तो मैं बनाऊंगा तो टाइम लगेगा अभी तो, ठीक है। तो यहाँ गैस एक्सचेंज हो रहा है एल्वोलाई में। बात करते हैं कि, अच्छा मैंने गैस एक्सचेंज के बारे में बताया था कि ओवरऑल जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है वो एज इट इज़ जाती है, एज इट इज़ जाती है, उसका कंजम्पशन नहीं होता, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है, नाइट्रोजन का। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। सो ब्लड इज द मीडियम, हाँ, जो भी हमारा जो ओवरऑल जो ऑक्सीजन जा रही है हर जगह पे वो कैसे जा रही है, ब्लड से जा रही है। हीमोग्लोबिन जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। 97% जो है वो ऑक्सीजन है, ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द RBC, रेड ब्लड सेल से। 3% जो ऑक्सीजन है इट इज़ कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट टू द प्लाज्मा, तो 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC, वो हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है। 3% जो है वो कहाँ पर है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा के बारे में भी बात करेंगे इन लेटर क्लासेस।
तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है ओवरऑल ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन है वहाँ पर, और हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल की फॉर्म में। अच्छा, रेड ब्लड सेल का जो कलर होता है रेड, तो वो रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल इसीलिए कहते हैं कि उसका कलर होता है रेड। और रेड कलर हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक टर्म है, इट इज़ ऑल्सो पी आई क्यू, इट इज़ दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो व्हाट इज इट? ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन कैन कैरी मैक्सिमम, each hemoglobin molecule can carry maximum 4 molecules of oxygen. ठीक है ना? Every 100 ml of the oxygenated blood can deliver around the 5 ml of the oxygen to the tissues under the normal physiological condition. हेल्दी पर्सन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है? 12 से 18 के बीच में होता है पर 100 ml। कभी आपने अपनी ब्लड टेस्ट कराया है आपने? एनीवन? दिव्या, दिव्या तो रोज करती होंगी ब्लड टेस्ट। दिव्या बताइए आप। यस सर। तो वहाँ पे एक रेंज लिखी रहती है दिव्या, आपने देखा होगा 12 से 18 के बीच में, ऐसा यस सर। है ना? तो जिसने भी सर अपना, 18 तो ज्यादा हो गया। हाँ मतलब 12 से 15 रहती है वो, है ना? 12 से जी 15। सर। हाँ, मैंने भी एक बार, अपना मेरा दोस्त था तो उसकी डेथ हो गई, तो मैंने उसका ब्लड निकाल के फिर उसका टेस्ट किया था, तब पहले पता चला था मुझे। ठीक है। यस सर। तो होता क्या है कि आपने सुष्नि ने कभी नहीं कराया ब्लड टेस्ट? पढ़ाया है सर। सुष्नि ने भी कराया, ठीक है, सबने देखा होगा। तो वहाँ पर जब देखेंगे ना, कोई भी हर हर एक चीज़ की एक रेंज होती है। जैसे मान लीजिए आपका अगर वेट कितना है, मैं अगर पूछूं, तो वेट जो होना चाहिए वो आपके बॉडी की हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है ना? या इसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉडी मास इंडेक्स, आप वो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना? अभी बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? विल टॉक अबाउट 2 थिंग्स। कौन सी 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे? विल टॉक अबाउट विल टॉक अबाउट, एक सेकेंड बताता हूँ। हाइट टू वेट, व्हाट इज इट, व्हाट इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? हाइट टू एज रेशियो क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, क्या कहते हैं उसका? देख लेते हैं। स्टंटिंग था एक, हाँ हाँ, कॉल्ड, हाँ हाँ, याद आ गया मुझे, याद आ गया बिना देखे। वैसे मैंने सर्च किया था बट सर्च में दिखाया नहीं इसने, पर याद आ गया मुझे। क्या याद आया मुझे? इसको बोलते हैं स्टंटिंग, स्टंटिंग, और इसको बोलते हैं वेस्टिंग, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं बाद में देख के बताऊंगा, या मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा उसमें, ग्रुप में। एक होता है स्टंटिंग, इसको कैसे याद रख सकते हो? मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? तो एक होता है, जैसे आपने सुना होगा बॉडी स्टंटिंग और बॉडी वेस्टिंग, ये इंडेक्स होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, तो बॉडी एक स्टंटिंग होती है, एक वेस्टिंग होती है। तो मैं कैसे याद करता हूँ? मैं ऐसे याद करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं याद करता हूँ स्टंटिंग को, मतलब याद करना तो कैसे याद कर सकते हो? स्टंटिंग को आप याद कर सकते हो फॉर एग्जांपल सेक्स से याद कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, है ना? सेक्स से। अब सेक्स के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव 18 ईयर ऑफ द एज फॉर द मैरिज, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अपने लिए मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ मैरिज के लिए। तो यानी कि जो एनी हाउ जो सेक्स इज रिलेटेड टू द एज, कंसेंट के बारे में बात करते हैं। बाकी वेस्ट और या फिर डब्ल्यू से याद कर सकते हो कुछ भी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाइट टू वेट का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग। और उसके बाद हाइट टू एज का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्टंटिंग। ठीक है, ये कम ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम माल न्यूट्रिशन और इस सारी चीज़ों को मेजर करते हैं समझने के लिए। बाकी आप निमोनिक कुछ भी बना सकते हो अपना। नाउ अब हम बात करते हैं, कहाँ पर थे? हाँ, कहाँ बात कर रहे थे हम? हीमोग्लोबिन के बारे में बात हो गई। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में बात हो गई। नाउ अब बात करते हैं सीओ के बारे में। सीओ इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। यू नो व्हाट, हैव यू एवर हर्ड दैट क्वेश्चन जिसमें बोलते हैं कि इफ़ यू शुड नॉट लिट एनी फायर इनसाइड द क्लोज्ड रूम, कोई कोयला नहीं जलाना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट इट?
है ना, होता है। बिकॉज वाई, जब आप कोल जलाते हो किसी क्लोज्ड रूम में, सो इट इमिट्स दी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या इमिट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ वी हैव द CO2 ऑल्सो, वी हैव द कार्बन मोनोऑक्साइड CO ऑल्सो। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 250 टाइम्स मोर कैपेसिटी टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? बाइंड दी ऑक्सीजन, बाइंड दी ऑक्सीजन, ठीक है ना। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की ओवरऑल जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन से ज़्यादा, ठीक, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसलिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा बच के रहना चाहिए। 250 टाइम मोर्स। इट इज़ जस्ट लाइक, यू कैन ड्रॉ द एनालॉजी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात किया CO2 और मेथेन। अब एटमॉस्फेयर में विच गैस इज मोर इन द एटमॉस्फेयर, CO2 और मेथेन? हाँ, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है वो लो है, वो ज़्यादा है किसका? मीथेन का। बात समझ गए? इट इज़ मोर ऑफ द मीथेन, तो इस वजह से मीथेन ज़्यादा हार्मफुल हो गई। वैसे यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब यहाँ से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है दैट CO2 हैज़ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, है ना, इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन 250 टाइम्स मोर पंजेंटली देन दी ऑक्सीजन, ठीक है ना। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन गैस रिमेन्स द कांस्टेंट। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक डिजीज है विच इज नोन एज द सिकल सेल एनीमिया। डिजीज इज नोन एज द सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? वी हैव द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू कैरी द ऑक्सीजन। इन द सिकल सेल एनीमिया व्हाट हैपन ओवरऑल, दी जो आपकी आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हीमोग्लोबिन को लेके जा रही हैं, उनका जो शेप हो जाता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, उनका जो शेप हो जाता है डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिकल सेल। उसका जैसे जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्मल शेप ऑफ द आरबीसी, दिस इज नॉर्मल शेप ऑफ द आरबीसी। सिकल सेल में उनका जो शेप होता है वो ऐसे हो जाता है, ऐसा सिकल सेल, ठीक है ना, क्रिसेंट शेप में हो जाता है। एंड दिस लीड्स टू व्हाट? अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म द स्ट्रैंड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब सिकल सेल हो जाती है तो हीमोग्लोबिन में उनकी हीमोग्लोबिन ले जाने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। एंड दिस डिसीज नोन एज दी सिकल सेल एनीमिया। दैट मच ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी बहुत कुछ है, इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। लंग्स ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में लंग्स का भी हेल्प करता है, हेल्प होती है। और बाकी हमें पता है जो आपका परस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, परस्पिरेशन जो होता है, जो स्वेटिंग होती है आपकी, ठीक है, वो स्वेटिंग भी क्या करती है? स्वेटिंग भी जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर को स्लो डाउन करने में हेल्प करती है। ये पता होगा आपको, स्वेटिंग भी हेल्प करती है। उसी तरह ये, अच्छा स्वेटिंग से याद करो, वो बताया था मैंने, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब होगा तो इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। याद आया सुशनेम? इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। और इवेपोरेशन में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। एक होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को बोलते हैं कोई भी लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो हमेशा एक होता है हाइपो, वन इज दी हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो अगर बोलिए हाइपोक्सिया, तो देखो हाइपोक्सिया मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने यहाँ बोल दिया हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया तो ऑक्सीजन की कमी कमी हो गई, ठीक है ना। और अगर मैंने बोल दिया हाइपर कुछ बोल दिया तो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दी हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। इफ यू आर देयर इन द कोल्ड वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन? हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा रहोगे तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा। डेजर्ट में चले गए, डेजर्ट में, इन द डेजर्ट यू विल हैपन, मतलब यू कैन बी कॉट बाय दी हाइपरथर्मिया, ठीक है ना। उसके बाद हाइपोथर्मिया में क्या होता है? ओवरऑल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा सांस ले रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ है, जो लोग हिली एरिया में रहते हैं, जैसे यू गाइज आर देयर इन द हिली एरिया, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इफ़ यू कंपेयरिंग विद मी, सो हु विल हैव मोर आरबीसी, यू एंड आई? कौन मेरे? सुष्निम के पास ज़्यादा आरबीसी कि मेरे पास ज़्यादा आरबीसी? बताओ सुष्निम, बताओ। मेरे पास। तुम्हारे पास है? कैसे? जादुई शक्ति है तुम्हारे पास, कैसे हो गई बताओ? कौन बताएगा इसका आंसर? रिकी, रिकी,
रिया अच्छा बताएंगे, रिया बताइए आप इसका आंसर। यस सर। हाँ, आरबीसी आपके पास ज़्यादा है क्या? यस सर। कैसे, हाउ? तो जो हीरो में जैसे उन तापमान की वजह से, किसकी वजह से? मतलब टेम्परेचर की वजह से ना सर। हाँ, अप्रोप्रिएट नहीं जा पाए। दिव्या बताओगे कुछ आप? दिव्या। सर ऑक्सीजन शायद ज्यादा है हमारे इधर, नहीं, उसका ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा है, ऐसे बात कर सकते हो। देखो, आप हिल पे रह रहे हो ना। क्लियर है। हाँ, साफ है ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन साफ है इसलिए ज़्यादा आ जाएगी अंदर। हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई हिल पे रहता है ना, तो उसको उसकी उसका फिजिकल लेवल बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको, मुझे पता है कि आपको मतलब ओवरऑल क्या होता था जब ट्राइबल पीपल रहते थे। सो इफ़ दे, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे आर हैविंग देयर डिनर, ठीक है ना, एंड इफ़ द सॉल्ट इज़ लेस इन द डिनर, इन द फूड, तो वो कम सॉल्ट खा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको सॉल्ट लेने के लिए एक हिल चढ़ के जाना पड़ता था। आई हैव सीन दिस थिंग। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि इफ एनी पर्सन इज लिविंग इन द हिली एरिया, सो दैट पर्सन नीड टू डू अ लॉट ऑफ लेबर। ठीक है ना, उसको चढ़ना, एक जगह जाना दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो एट दैट टाइम द ऑक्सीजन डिमांड्स लॉट ऑफ व्हाट, लॉट ऑफ द, सॉरी, द बॉडी डिमांड्स लॉट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो उसकी जो ब्रीथिंग रेट्स हो जाएंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, एंड हेंस देर बी लॉट ऑफ द ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन का जो ओवरऑल अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। बात समझ गए? ठीक है, मेन चीज़ ये है, क्योंकि वो उनको फिजिकल एक्टिविटी, जो जितना फिजिकल एक्टिविटी करेगा, है ना, उसको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी? ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा बॉडी में। बात समझ रहे? ठीक है, इस तरह से पूरा सिस्टम काम करेगा। अस्थमा के बारे में बताइए, खांस खांस के थक गए, ब्रोंकाइटिस। हाँ, इन्फ्लेमेशन होता है ना, इन्फ्लेमेशन। एक होता है जैसे मैंने बोला कि अस्थमा इज बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन द ब्रीडिंग। और ब्रोंकाइटिस के बारे में बात भी किया, ब्रोंकाइटिस एलोलाई बात करें। एक होता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस ये क्या होता है? व्हाट इज इट? दिस इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन। इट इज, ब्रेन में। हाँ, वेरी गुड। द, यू कैन से द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। लिख लो इसको, जिसको नहीं पता, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, उसको बोलते हैं क्या? मेनिनजाइटिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेनिनजाइटिस। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक एरोबिक, तो सब हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा। अच्छा, ये आ गया अभी। चलो उसको कर ही लेते हैं, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ख़त्म कर लेते हो, क्योंकि तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी भाई, यही सब पढ़ने तो नहीं रहेंगे। देखो, थोड़ा सा हम बात समझते हैं अपनी बॉडी के बारे में, सेल्स के बारे में बात समझते हैं। तो सेल्स में हमारे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको। पहला है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम क्या है, एग्जाम में क्या आएगा? अब ये बोर तो नहीं हुए, थके तो नहीं आप लोग? ठीक है, थक जाओगे तो बताना। आरबीसी का नाम क्या है? एरेथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? एरेथ्रोसाइट। दिस कैन आस्क इन एग्जाम, व्हाट इज एरेथ्रोसाइट्स? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी इज द ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी काम का है वही हीमोग्लोबिन और वो ऑक्सीजन, वो सारा काम है। डब्ल्यूबीसी का काम, दिस इज नोन एज दी, हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी बॉडी की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। कोई बाहर से पैथोजन है, पैथोजन क्या होता है? पैथोजन, दिव्या। फॉरेन ऑर्गेनिज्म। हाँ, कोई भी, जो भी बाहर से चीज़ आ रही, एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी इज द पैथोजन। ठीक है ना, तो यानी कि जो एंटीजन आया बाहर से वो भी पैथोजन है। और एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनती है, मैंने बताया था, एंटीबॉडी काम नहीं बॉडी के अंदर, तो उसमें बॉडी लिखा हुआ है। तो डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आरबीसी की जो नंबर होता है वो 5 to 5 पॉइंट मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक मिलीमीटर, मिलियन पता है ना, 10⁻⁶, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। यूएस का 5 ट्रिलियन डॉलर खत्म हो गया कल, वो वाइप आउट हो गया। ठीक है, 5.5 to 5, मतलब इतना होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6 से 8 हज़ार पर क्यूबिक मिलीमीटर। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। जब आपको डेंगू हो जाता है, आपको नहीं, मतलब किसी को डेंगू हो गया, सब हो गया, उस कंडीशन में काफ़ी कम हो जाती है वो। फिर बात करते हैं ब्लड के बारे में, बात करते हैं ब्लड क्या है। ब्लड के बारे में बात कर चुके हैं। ब्लड इज अ टिश्यू। क्या है? टिश्यू। बट बिकॉज इट इज कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हेंस, और इट इज इन द फ्लूइड स्टेट ऑल्सो, एंड इट इज नोन एज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, इट इज फ्लूइड ऑल्सो एंड इट इज कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेंस इट इज नोन एज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड एंड लिम्स बोथ आर कंसिडर्ड एज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड और लिम्फ का भी वही काम है जो ब्लड का काम है। ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट। ठीक है, ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन कैरीज दी ऑक्सीजन। इस चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास है?
नहीं कुछ खास नहीं, वही सब लिखा हुआ उसमें। तो ब्लड क्या है ओवरऑल। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया था हमने अभी। अभी हमने क्या बात किया था, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ओवरऑल ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मतलब ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह का होता है, कि ब्लड कैसे जाता है। तो ब्लड दो तरह से जाएगा, ओपन और क्लोज्ड। हमारे मैमल्स में क्या है, मैमल्स में क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव दी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और कॉकरोच में वाइट ब्लड क्यों निकल रहा है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो इन इन्फेंट्स यानी कि सॉरी इनवर्टिब्रेट्स they have the open circulatory system. For example, crustaceous, insects, mollusks, they have the open circulatory system, and their internal organ and tissue are surrounded by the circulatory system. यानी कि जो उनके ऑर्गन है बॉडी के ऑर्गन इनवर्टिब्रेट के, इट इज सराउंडेड बाय द सर्कुलेटरी फ्लूइड, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है, जो बॉडी की कैविटी है उसको सेव करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स को बचाने के लिए वी हैव द स्केलेटन, वी हैव द स्किन, मांस है हमारे पास, फ्लैश है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हम लोग का क्लोज वाला है, लार्ज एनिमल्स में मिलेगा, वर्टिब्रेट्स मिलेगा। ब्लड डज नॉट फिट इन दी बॉडी कैविटी, हमारे यहाँ बॉडी कैविटी में ब्लड नहीं है, उसके लिए अलग से वेंस पड़ी हैं, ठीक है। ये हो गया। ब्लड के बारे में बात किया जाए तो ब्लड क्या है, ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने बताया था हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड है, फ्लूइड है, इट इज़ मोस्टली एल्कलाइन इन द नेचर। सो ब्लड का भी नेचर क्या है, एल्कलाइन है, ठीक है ना। ब्लड ओवरऑल जो हमारी बॉडी का जनरली 7% ऑफ द वेट होता है। ओवरऑल एक हेल्दी बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। इतना सारा आपके पास ब्लड है, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं इतना, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बात किया तो प्लाज्मा क्या है, इट इज़ द प्लाज्मा क्या है, इट इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्लाज्मा के बारे में क्या है, प्लाज्मा भी मतलब एक विस्कस फ्लूइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड जो होता है, ये ध्यान रखना कि ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। अगर आप कभी अपना हाथ काट के देखेंगे तो अब जो ब्लड निकलेगा वो उसको आप ऐसे ऐसे करेंगे, इट इज़ वेरी स्टिकी इन नेचर। देखा है आपने, स्टिकी इन नेचर, बहुत स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है, बिकॉज उसमें प्रोटीन है। तो कोई पूछे कि भाई ब्लड इज स्टिकी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से वो स्टिकी उसका नेचर होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, 90 to 90% क्या होता है, प्लाज्मा में वाटर होता है। जैसे यूरिन के बारे में बात किया था, तो यूरिन में 97% क्या था, वाटर था। उसी तरह प्लाज्मा में 92 to 90% वाटर है। फिर देखो बात करते हैं, देखो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात की है, जहाँ मैं पहले बताया था आपको, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, और एक मिनट, हाँ, और एल्बुमिन, दे आर द मेजर प्रोटीन्स। तो ओवरऑल ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ठीक, मेजर प्रोटीन्स। फिब्रिनोजन जो होता है नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और द कोगुलेशन, तो यानी कि फिब्रिनोजेंस ये क्लॉटिंग करते हैं। और क्लॉटिंग के लिए और क्या बताया था, अभी विटामिन कौन सा था क्लॉटिंग के लिए, क्लॉटिंग के लिए विटामिन ये के। तो ये हमारा, और एलम को भी रख लो इसमें, एलम, ये सब क्या है, ये हमारे लिए क्लॉट कर रहे हैं, ब्लड को क्या कर रहे हैं, क्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉट कर रहे हैं, क्लियर। ग्लोबुलिन जो है ये इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एंड एल्बुमिन हेल्प्स इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। तो एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, वो मतलब मेन ये फिब्रिनोजन। एक होता है ये फिब्रिनोजन एक होता है प्रोथॉम्बिन भी तो होता है एक, प्रोथॉम्बिन, प्रोथॉम्बिन भी क्लॉट, एक मिनट, हाँ ठीक है, प्रोथॉम्बिन जो है वो क्लॉट करने में हेल्प नहीं करता, मतलब बचाता है क्लॉट करने को। देखो दो चीज़ें होती हैं, इफ़ आई एम करेक्ट, इफ़ आई एम इनकरेक्ट जस्ट करेक्ट मी। फिब्रिनोजन क्या होता है, देखो होता क्या, जैसे जैसे ही आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है, जैसे आपने अपना हाथ, मतलब अपना हाथ निकाली दूसरे का हाथ काटा, जैसे आपने हाथ काटा दूसरे दोस्त का, तो ब्लड बाहर निकला, ठीक है। जैसे ही ब्लड आता है इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, as the blood comes in the contact of oxygen, there's a net type of structure created, एक नेट टाइप स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, नेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और वो जो नेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे और गाढ़ा होता जाता है, और फिब्रिनोजन की वजह से वो और गाढ़ा होता है और वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। तो फिब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्रोथॉम्बिन जो है वो ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर भी तो ब्लड जम सकता है ना, तो वो क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ द प्रोथॉम्बिन, ठीक है। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी ये हमारा प्लाज्मा है। इरेथ्रोसाइट्स के बारे में, ठीक है, यहाँ तो कुछ खास नहीं था, बात कर चुके हैं यहाँ पर, ये तो बात कर चुके हैं हम आपसे ना। ग्रेवियर और ऑफ आरबीसी कहाँ बन रही है, आरबीसी कहाँ बन रही है, आरबीसी बन रही है बोन मैरो में, बोन मैरो में आरबीसी बन रही है। और आरबीसी खत्म कहाँ पे हो रही है, वो खत्म हो रही है स्प्लीन में, ठीक है ना, स्प्लीन में। और लिवर में भी थोड़ी बहुत खत्म होती है। और लिवर में क्या होता है, लिवर में हमारा, लिवर में फैट होता है, फैट होता है, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यू होता है, लिपिड होता है, ब्लबर, ठीक है, ये सारा चीज़ें। अब आगे देखते, ये देखो यहाँ पे लिखा तो है, कहाँ लिखा है, देखो कहीं लिखा था यहाँ पे,
इट इज़ मोर इन द मेल्स पीपल लिविंग इन दी हिली एरिया। देखो हिली एरिया में जो लोग रहते हैं उनके पास क्या है, आरबीसी बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत ज़्यादा है। आरबीसी फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, पता है हमें। लिवर में भी आरबीसी बनती है। अच्छा लिवर में आरबीसी बनती है, मैंने एक बताया था डीएनए के बारे में। तो डीएनए कहाँ मिलेगा, डीएनए दो जगह मिलेगा, एक मिलेगा आपको न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया, याद है, हाँ या नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिल रहा था दिव्या, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिल रहा था, याद है। और माइटोकॉन्ड्रिया से हमने 3 पेरेंट बेबी बनाया था, याद है, 3 पेरेंट बेबी। किसी कुछ नहीं याद है, नहीं हमें कुछ नहीं पता, हमसे मत पूछो, ऐसा है क्या है। अरे अभी याद आया कि नहीं आया, डीएनए मतलब याद कर लो। अच्छा न्यू, यस सर। हाँ ना, बता दो तो कम से कम पता चला, मुझे पता ही चला। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑल्सो और माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो, ठीक है। और बाकी प्लांट और सेल उसका तो बात कर चुके थे हम लोग, प्लांट न्यूक्लियस और एनिमल न्यूक्लियस उसमें सेल में, ठीक है। आरबीसी इज डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा पहले ये देख लेते तो समझ आएगा एक मिनट को। मैंने पिक्चर लगाई थी, कहाँ लगाई थी पिक्चर, नहीं लगाई थी, नहीं लगाई थी, अच्छा ठीक है। ओके सो आरबीसी दे आर डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, एक्सेप्ट दी आरबीसी ऑफ द कैमल और लामा, यानी कि आरबीसी में जो होता है रेड ब्लड सेल्स, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एक्सेप्ट दी आरबीसी ऑफ द कैमल एंड लामा। तो मैं चैप्टर बहुत पहले खत्म हो जाता, लेकिन बस ये सब पीवाईक्यू चल रहे हैं अपने, इसलिए लेट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे आपको कौन सा मेथड पसंद आता, कि बस थ्योरी करा देते कि जैसे इस तरह से वन लाइनर भी करा रहे, ये भी सही है, ये ठीक है तरीका, फीडबैक के लिए पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आरबीसी होती है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट द आरबीसी ऑफ द कैमल एंड लामा। तो कैमल पता है आपको, कैमल और लामा, लामा एक शीप टाइप का होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। और अभी बताया आपको कैमल, कैमल के बारे में और कैंगरू के बारे में, कि वो क्या है, कैमल तो मार्शुपियल नहीं है, वो मार्शुपियल है। दूसरी चीज़, इनके जो एक्सक्रीटा होगा वो सॉलिड नेचर का होगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड रेड कलर का ब्लड कर देता है, ठीक है, सब पता है हमें इसके बारे में, ओके। एंड हाँ ये सब पता है हमें, ये बात कर चुके हैं इसके बारे में, सब सब बात कर चुके हैं। अच्छा ये बात किया था हमने एक बार, अभी आपसे पहले बात किया था, किसके बारे में बात किया था, आई हैव टॉक्ड अबाउट यू, एक टर्म है मल्टी पोटेंट सेल। मल्टी पोटेंट सेल, मल्टी मतलब क्या हो गया, मल्टी पोटेंट मतलब पोटेंशियल है उसके पास, और सेल यानी कि एक ऐसा सेल जो बहुत सारी सेल्स में बनने का पोटेंशियल रखता है, दैट इज नोन एज द मल्टी पोटेंट सेल्स। तो सेल दैट कैन डेवलप इनटू मल्टीपल टाइप ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं मल्टी पोटेंट सेल, ठीक है। उसके बाद एक सेल का नाम और मैंने लिया था, स्टेम सेल के बारे में बताया था, स्टेम सेल। स्टेम सेल भी क्या होता है, स्टेम सेल मैंने बताया था कि अगर आपका हार्ट लिवर किडनी कुछ खराब हो जाए तो आप स्टेम सेल, आपकी बॉडी का जो स्टेम सेल है उससे डिफरेंट ऑर्गन्स आप जनरेट कर सकते हो लैब में, तो उसको बोलते हैं स्टेम सेल। तो स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल बेसिकली मल्टीपोटेंट सेल इज अ टाइप ऑफ स्टेम सेल। मतलब स्टेम सेल जो है काफ़ी बड़ा है, उसका एक उसका छोटा सा पार्ट है क्या, मल्टीपोटेंट सेल, ठीक है, ऐसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही समझना है। लिम्फोसाइट्स आर द मेन इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी, वो मेन इम्यून सिस्टम है, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होते हैं दो तरीके होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट मेक द एंटीबॉडीज इन द बॉडी प्लाज्मा, while T lymphocytes kill the tumor cells that helps control the immune response and protect the body from the disease caused by pathogens। कहने का मतलब क्या है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, तो दो तरह की है, एक है बी और एक है सी। बी वाली क्या कर रही है, जो ओवरऑल एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, प्लाज्मा है, और उसको मतलब कहीं ना कहीं खत्म कर रही है, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है, या बना रही है अपना। टी लिम्फोसाइट जो है वो ट्यूमर को किल कर रहा है। जो आपका कैंसर होता है ना, कैंसर, कैंसर कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, यानी कि जो खराब सेल्स है वो डिवीजन होता है और ज़्यादा उसका, और वो अच्छी सेल को भी खराब कर देती है, उसको बोलते हैं कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज, स्टडी ऑफ कैंसर, हाँ ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ल्यूकीमिया इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर होता है, और द बोन मैरो कैंसर, ठीक है ना। अब नॉर्मल प्रोड्यूस ऑफ द वाइट ब्लड सेल, देखो वाइट ब्लड सेल हमारी एंटीबॉडीज़ हैं,
पर जब यही वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है बॉडी में, तो ये एंटीबॉडी मतलब तो ये हमारी बॉडी में एज ए कैंसरस सेल्स काम करती हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? हाँ तो जो आपने स्टेम सेल बताया ना, हाँ उसका कोई एग्जांपल हो सकता है जो हम वो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व करता है, बोलते हैं ना, तो उम्बिकल, हाँ वो हाँ हाँ, उम्बिकल कॉर्ड में जो होता है, उम्बिकल कॉर्ड में आपकी स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, इसलिए उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक, ओके, ठीक है। अब ब्लड के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर उसके बाद बाकी कल करेंगे, ठीक है ना। ब्लड जो है, पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्लड की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, ठीक है। और यहाँ से आपको बस खाली ये पता होना चाहिए कि ओ जो है, ओ आपका यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की और आर एस फैक्टर की भी खोज की थी, आर एस फैक्टर भी फैक्टर होता है, उसकी भी खोज की थी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, फिर से लिखा था, फैब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फैब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम, वही यानी कि फैब्रिनोजन जो है वो प्रोटीन को क्लॉट करता है। कैल्शियम आयन प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। अब देखो क्या क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीवन पे अटेंशन, कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी क्लॉटिंग। और कौन कौन सा था, एलम कर रहा था, एलम वॉज डूइंग, और कौन कर रहा था, विटामिन के वॉज डूइंग, और कौन कर रहा था, फेब्रिनोजन। ये सब क्या कर रहे थे, क्लॉटिंग के हेल्प कर रहे थे, ठीक है। ओके ओके, और हार्ट में अगर बात किया जाए तो मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब अगर बात किया जाए कि इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात किया जाए, उसके बारे में अ, हमारा हार्ट तो 4 चैम्बर हार्ट है, इसमें दो दो एंट्रिकल और दो वर्टिकल्स है ना, वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें। और बाकी अगर बात किया जाए इसके बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, तो एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस में क्या होता है कि 3 चैम्बर हार्ट्स होते हैं मोस्टली, ठीक है ना, 3 चैम्बर हार्ट्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। पर क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, बाकी जितने भी एम्फीबियंस हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एंट्रिकल और एक वेंट्रिकल, हाँ ठीक है। पर अगर ह्यूमस की बात किया जाए तो वहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होगा, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट की अगर बात किया जाए तो ये ऐसा होता है। देखो जो आल्ट्रियम जो होता है, आल्ट्रियम है ना, ये इसको मैं एंट्रियम बोल रहा था, आल्ट्रियम जो है वो ऊपर होता है, ए फॉर आल्ट्रियम, ए फॉर ऊपर, ठीक है, एबोव, तो ये ऊपर होगा, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। और ओवरऑल लब डब के बीच में एक का साउंड ऐसा होता है जब वो क्या होता है, उस समय जो ओवरऑल जो हार्ट होता है वो रेस्ट कर रहा होता है लब डब के बीच में, ठीक है। और आपकी जो पल्स रेट होगी वो वही होगी सेम जो आपकी हार्ट रेट होगी, ठीक है। जो पल्स रेट होगी वो सेम होगी आपकी हार्ट रेट के थ्रू। और बाकी बात किया है अभी, हार्ट देखो लिखा हुआ है, हार्ट रेस्ट बिटवीन द 2 बीट्स, पल्स रेट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेस्ट बीट्स द सेम एज द रेट, ठीक है। यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है वो सेम आपकी वर्क करेगी ऐसे पल्स की तरह, ठीक है। रिक्की चली गई क्या, ठीक है। पल्स रेट ये हो गया, ठीक है, ओके। और एवरेज जो होता है हमारा हार्ट जो होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो वॉल्यूम कितना करता है, नियर अबाउट पर मिनट, एवरेज वॉल्यूम जो होता है उसका वो 5 लीटर होता है इन द हेल्दी इंडिविजुअल। यानी कि पर मिनट हमारा हार्ट जो है 5 लीटर जो ब्लड को, पूरा जितना ब्लड है बॉडी में, उसको क्या करता है, उसको वो पंप करता है। और पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं। पेस मेकर क्या है, आर्टिफिशियल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी बीटिंग को रेगुलेट करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी बीटिंग को रेगुलेट करता है, दैट्स नोन एज दी पेस मेकर, उसको बोलते हैं हम लोग पेस मेकर, ठीक है। ओके, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। और बाकी तो पता ही होगा आपको, हाई ब्लड प्रेशर जो होगा उसको हाइपर भी बताया ना, हाई मतलब हाइपर और लो मतलब जो हाइपर नहीं है, ठीक है ना। तो हाइपर मतलब हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपर टेंशन। एक होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देखो ये होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, देखो सिस्टोलिक मतलब होता है जो अपर लाइन होती है, यानी कि जो अपर रीडिंग होती है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। सो दिस इज द सिस्टोलिक, दिस सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब क्या हो गया, जब आपका जो हार्ट है उसने ब्लड को क्या करता है, इजेक्ट कर दिया है। इजेक्ट मतलब क्या, बाहर को फेंक दिया है, जैसे फेंकेगा कस के दम लगा के फेंकेगा ना, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जो लोअर रेट होती है प्रेशर, हार्ट प्रेशर का, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक,
ये हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक थोड़ा सा याद रखेंगे, इसकी रेट याद रखेंगे। सिस्टोलिक वाला कौन सा होता है, सिस्टोलिक वाला जो आगे का होता है 120 और ये 80। तो 120 और 80 ये क्या हो गया, ये रीडिंग होगी मैक्सिमम और मिनिमम। इससे ऊपर नीचे है तो दिक्कत है फिर। हाई ब्लड प्रेशर है तो जो एज रिस्क फैक्टर ये सारी चीज़ें होती है, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आर्टरी और वेन्स के बारे में मैं बता रहा था। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं। तो आर्टरीज अगर ब्लड को हार्ट से ले जा रही हैं तो क्योंकि ब्लड हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो अगर आर्टरी हार्ट से ब्लड को ले जा रही हैं तो द ब्लड विल बी देयर इन द वेरी हाई प्रेशर, एंड इफ द ब्लड इज देयर इन द आर्टरी इन द वेरी हाई प्रेशर तो दे शुड बी वेरी थिक ऑल्सो, ठीक है। दूसरी चीज़, द ब्लड दैट द आर्टरी आर कैरिंग शुड बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड, क्योंकि वो हार्ट से डायरेक्टली आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ओवरऑल आर्टरी और वेन्स में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, ये कनेक्टिंग वेसल्स है। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब ये पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ये पिंक कलर की हटाओ। उसके बाद बात करते हैं ब्लड फ्लोज विद द हाइयर प्रेशर। क्यों, क्योंकि आर्टरी में जो भी ब्लड आ रहा है वो हार्ट से आ रहा है, तो हार्ट बहुत कस के पंप कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, बहुत बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होंगे, पर यहाँ पर ओवरऑल लो प्रेशर पे हैं। नेक्स्ट, वॉल्स ऑफ द आर्टरी जो होंगी वो स्ट्रांग होंगी। क्यों, अगर पतली होंगी तो फट जाएगा ना, इट विल बी टीयर अपार्ट because the blood is coming at very high pressure. But the artery, the overall the walls of the veins, they are weak. Next, all the arteries carries the oxygenated blood except the pulmonary artery. ठीक, पर वेन्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और आर्टरी द इंटरनल वॉल्व्स आर एब्सेंट, और इसमें इंटरनल वॉल्व्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द इंटरनल वॉल्व, ओवरऑल क्या होता है जब वेन्स में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द हार्ट, तो हार्ट से जब नीचे ब्लड जा रहा है तो इसमें कोई वॉल्व नहीं है। व्हेन द ब्लड इज मूविंग फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, सो दे कुड बी ए कंडीशन कि ये जो ब्लड ऊपर जा रहा है ये नीचे भी तो जा सकता है ना वापस, इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। सो दिस कैन ऑल्सो मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तो ये हार्ट तो ऊपर है ना, हार्ट तो ऊपर है, तो इफ द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द डाउन टू द हार्ट, सो इट इज कमिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो वो पीछे भी जा सकता है। टू अवॉइड दिस देयर आर वॉल्व्स, यहाँ पे वॉल्व्स बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या वॉल्व्स होते हैं, तो सिर्फ द ब्लड कैन ओनली फ्लो इन दी यूनि डायरेक्शनल वे, पर यहाँ पर ही नीचे जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ पर वॉल्व की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, कल स्टार्ट करेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और मैं कोशिश करूँगा कि आई थिंक इसकी 8 क्लासेस हो गई हैं, विद इन 2 to 3 क्लासेस, विद इन 2 क्लासेस आई शिफ्ट, मैं देखता हूँ विद इन 2 क्लासेस 2 to 3 क्लासेस इसको मैं वाइंड अप करके ख़त्म करूँ, क्योंकि बाकी जो हो गया है कुछ वजह ज़्यादा खास नहीं है। मैक्सिमम 2 to 3 क्लासेस, ठीक है, क्योंकि फिर अभी मुझे एटलीस्ट आई नीड एटलीस्ट 4 to 5 क्लास इन दी फिजिक्स एंड 4 to 5 क्लास इन दी केमिस्ट्री, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और मैं चाहूँगा प्लीज़ एनी हाउ इफ़ यू कैन मेक अ शॉर्ट नोट इन 20 to 25 30 पेजेस ऑफ दिस येलो हाईलाइटेड पार्ट, और जो मैं इसको एडिटेड पीडीएफ दूंगा उससे खास तौर से, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है एवरीवन, सुष्नेम, रिया, दिव्या, ठीक है। बिकॉज फॉर मी लाइक आई कांट अफोर्ड टू मेक द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम दिस येलो पार्ट, बिकॉज अभी मेरे पास बहुत सारा काम है ना, क्लासेस भी बहुत सारी हैं, क्लियर, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, है ना। कोई डाउट है आपकी, बता दीजिए। हाँ, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का रिगार्डिंग वो डबल सर्कुलेशन होता है ना, उसका थोड़ा बहुत बता दीजिए। किसका किसका समझा नहीं मैं आपकी बात, डबल सर्कुलेशन, अभी भी नहीं समझा, क्या बोला आप। डबल सर्कुलेशन होता है ना सर ब्लड का, अच्छा, डबल सर्कुलेशन, हाँ हाँ, वो उसी के लिए बता रहे, जैसे कि ब्लड वो आता है जाता है, तो उसी के लिए, मतलब इट इज़ गोइंग लाइक वन साइड इज गोइंग टू द हार्ट, फिर इट इज़ कमिंग, तो उसी को पूरा बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। और कोई डाउट किसी का, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट वो, बस आपने वो याद रखना कि वो दिया किसने था, नाम उनका लैंडस्टीनर, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है ना, तो वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रेक, ठीक है, तो वो याद रखना है आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे, है ना। और जस्ट अच्छे से पढ़ के आइए, और प्लीज़ घटना चक्र के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए बायो के, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाना, साइंस के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ।